Jai Hind everyone. Welcome back to the फौजी टॉक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज का जो एपिसोड है ये थोड़ा हटके है बिकॉज काफ़ी जनों ने मुझे बोला था या जब मैं फौज में था ये भी एक रिक्वायरमेंट थी। सो दिस अ टॉक ऑन फाइनेंस, यू नो, कि जब हम फौज में होते हैं तो नोबडी इज देयर टू टेल अस अबाउट फाइनेंस, कि जो हमारा पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए या पैसा कैसे बचाए या पैसा कैसे बनाए, ऑल दोज थिंग। एंड मेनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी कि उस पे अगर हम एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। सो टुडे इज़ दैट डे। मेरे साथ मेरे दो अच्छे दोस्त और शैलेश इज़ माई ब्रदर इन लॉ ऑल्सो। एंड आज हम बात करेंगे रोहित और शैलेश से अबाउट हाउ यू कैन मेक मनी, हाउ मनी, बोलते हैं ना जैसे लक्ष्मी जी आती है, अगर आप लक्ष्मी का कदर करोगे लक्ष्मी जी का तो लक्ष्मी जी आपको बरकत देगी। सो दैट इज व्हाई आई हैव रोहित एंड शैलेश. Rohit is an expert in you know he's helping people to make money, to understand stock market, to understand better asset class, and he has got amazing experience both in the finance aspect as well as AI and machine learning. So that is what his career. डिटेल में रोहित के बारे में एंड में आप गेस्ट इंट्रोडक्शन में देखोगे. एंड शैलेश, ऑफ कोर्स वी हैव बीन ग्रोइंग अप टुगेदर even today, like 50 साल में भी. And Shailesh comes with engineering background with rich experience in IT, and last 15 odd years he's making money through various instruments like stock market and various other aspects. तो Shailesh is a very well-read person, both of them rather. काफ़ी self-help books he had read, he had done amazing courses. For example, the Millionaire Mindset, the 7 effective habits of how you can, जो हमने किताबें पढ़ी है, that he has done the courses and various other courses. So welcome Rohit and Shailesh. So today you will make me rich. Yeah, we'll try. Chalo, thanks, Vijay bhai. Thanks for having me, and it's my pleasure being here. So, I just want to start with my quick introduction. So, if I talk about myself, I have been into the Indian financial market specifically from last 11 years, wherein I'm doing direct equity investments and trading and all. But technically, I'm attached to the market almost from last 17, 18 years, ever since I started my investment journey through SIPs and all and these things. And parallelly, I'm, as you mentioned, I'm AI and machine learning specialist, almost with last 18 plus, 19 plus years, and I have developed multiple solutions for various industries Okay. across different geographies. Yeah. So this is my brief introduction. Yeah. Thanks, Rohit, and welcome to Thanks. the 4G Thank you. Talks, the podcast. Thank you. Yeah. Shailesh, Yeah. yes. Thank you for having us on your show, Vijay bhai. We have been friends for almost like 50 years now. Yeah. So, जब से पैदा yeah. हुए हैं उससे थोड़ा so 10 साल. so yeah, so right from school and college, right? So we have been, following our passion. Did True. engineering. So I did my computer engineering from Mumbai University. Then had the opportunity to travel around Asia and Europe. So, while I was in Japan and all, I came across Rich Dad Poor Dad, the book by Robert Kiyosaki, and that's when actually it hit me, right? Because our parents always taught us to go and get good grades, good jobs. So we have always been toppers in school and did well in college and all. But at the end of the day, you understand that you are in the wrong game. Very true. Very true. So you are, even if you win the rat race, you're still a rat. So at that time, when I first read the book, it did not actually, go well with me. But eventually in my career, I saw those things actually happening. That I was, from a programmer, I became a business analyst. Correct. Worked with various banks, Western and American and European banks. Then became a project manager. Was traveling around, traveling business class, driving a BMW, everything. But end of the day, you find your bank account at the end of the month is still empty. True. True. So True. you see exactly those things happening in your life. That's when I decided that I have to take my financial freedom journey so seriously, and that's when I started learning the stock market. I've been in the market for 20 years, but systematically I've been doing it for 15 years now. So I learned it from a millionaire
called Adam Khoo, who's based in Singapore. He trades in Singapore and US markets. Okay. He's a multi-millionaire. So that's when I got to understand the markets better and have a method to the madness. And have had my fair bit of successes and failures along the journey, because you need a lot of discipline along the way. So, and the last 4 years, I have been completely, I decided that I'll fully involve myself, and I'm on the mission to help people win their financial freedom. Oh, great. So, आप दोनों ही एक्सपर्ट है आपके फील्ड में. So, जो सुनेंगे, so my idea purely is that it is for all ages, पैसे हम 60 साल में भी बना सकते हैं अगर सही गाइड कोई कर दे, या पैसे हम जब फ्रॉम द टाइम वी हैव सेंसेस लाइक 12, 13, 14 एज अ टीनेजर तब से ही बना देते हैं. सो मेनी ऑफ अस हैव मिस दैट बस. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें पता चलता है यार काश कभी ऐसे किया होता. आज हम कर रहे हैं, बट मेनी ऑफ अस इन आवर एज टुडे ऑल्सो आर वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. सो मेरा क्वेश्चन जो डिस्कशन करेंगे, जब हम ग्रो अप हो रहे थे, लाइक both of us come from a very humble beginning, and since I know शैलेश, हम चौल में पले बड़े हुए, तो हमारी जो सेविंग्स वाला जो ये था, आई रिमेंबर माई फादर ही यूज्ड टू गेट जो भी सैलरी थे 5-6 हज़ार, एंड मॉम यूज्ड टू सप्लीमेंट विद ट्यूशंस एंड ऑल. हमारे हिसाब से पैसा वॉज सेविंग बैंक में डालो, और उससे अगर ऊपर गए तो फिक्स डिपॉजिट, यही दो था. और सेविंग्स में तो कि आज के डेट में तो 2.5% जो भी है, एंड एफडी. इसको छोड़ के तीसरा वाज ओनली बीइंग फ्रॉम द साउथ इंडिया, गोल्ड में जो छोटा मोटा हो जाता. गोल्ड भी ये होगा कि फ्यूचर में अगर लड़की होगी तो उसको बचा उसके शादी के लिए, या ये. एंड यू विल बी सरप्राइज बाय द स्टैटिस्टिक यू आल्सो नो, अभी भी 70 to 80% ऑफ इंडिया, रूरल भारत, अभी भी हम वही इंस्ट्रूमेंट में बिलीव करते हैं, राइट? that's true. एंड मेनी ऑफ अस हैव मिस द बस. थैंक्स टू द ग्लोबलाइजेशन या जो हुआ, लोग फाइनेंस के बारे में अवेयर होना चालू हुए. एंड जब मैं फौज में था, मैं इसके लिए वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग फ्रॉम यू. इवन जब हम फौज में थे, दो ही था, एक हमारा प्रोविडेंट फंड होता है, जो भी पैसा आता वहाँ, और दूसरा ये जो पैसे मिलते थे वो लाइफस्टाइल के उसमें खर्चा हो जाता था. एंड ऑफ द डे आप देखोगे यार कुछ है ही नहीं हाथ में, एंड एक कुछ गड़बड़ हो गया घर पे, या समथिंग वेयर रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा आ गया, एंड यू आर बैक, फिर आप सबसे पैसे मांगते रहोगे. सो सैलरी 10 तक 30 को आती थी, 10 तक एवरीथिंग इज ओवर, EMI ये वो टक 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 दे दिया, एंड देन यू आर बैक टू वेटिंग कि एंड जब भी फरवरी महीना आता तो बहुत खुश होता कि 28 दिन ही होती है उसमें ना कि सैलरी जल्दी. तो ये सारे इसमें जिए. तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ, दिस इज फॉर everyone who's listening to us, because you both have done your investment at a pretty young age, where you are comfortable with money. Probably this was my longest commentary in this podcast. इसके बाद आप ही बात करोगे दोनों. तो आपके हिसाब से to the people who are watching, पूरे भारतवर्ष के लिए this would be a great advice, and उसके बाद वो लोग जाके पढ़ेंगे कहीं से. So what is your take on the historical aspect of money saving and this thing, the Indian mindset? So all yours. So विजय भाई, what I feel ना, अगर हम लोग 20-25 साल पुरानी बात करें, so at that time we had very less investment opportunities, but expenses were also very less. Correct. And हम हिंदी इंग्लिश में रखेंगे, ठीक है. लेकिन अगर आज हम अपने फादर की बात करूं या अपने अंकल की बात करूं, बिकॉज आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली. ओके. सो आई हैव सीन कि मैं, मेरा भाई, मेरी मदर एंड माई फादर वॉज अ सिंगल earner in the family, but still we used to live a lavish life, and still he managed to save and build a house and build a shops for us, or build a property for us. But अभी क्या लगता है ना, जैसे टाइम बदल रहा है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, and there are many things attributed to that. So पहला हो गया आपका peer pressure हो गया. आज के टाइम में जब से we have multinationals in India, people started doing the jobs in BPO 20-25 साल पहले. तो उसमें हुआ क्या, ऑफिस जाते हैं लोग, देखते हैं साथ वाले के पास बाइक है, साथ वाले के पास महंगा मोबाइल फ़ोन है. सही बात. दे एंड अप बाइंग दैट. भली सैलरी 10,000 आ रही है, लेकिन मोबाइल लाख रुपए का चाहिए.
I hope Shailesh bhai also agree with me on this. We have all done that. Yeah, So, we also have done that. Parallelly, अभी जब से सोशल मीडिया आया, ट्विटर आया, यूट्यूब आया, people got to know कि भैया खर्चा करने के there are many opportunities in the market. तो लोग people started traveling, people started buying bikes, people started spending money on clubbing and all. So then parallelly, if I talk about the banking system also in India, people were not familiar with the credit card. Credit card का मतलब ये होता था कि भाई पैसा नहीं दिया, थोड़ा सा लेट हो गया तो बैंक को ब्याज देना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा. सो बराबर. दैट इज द रीजन आवर पेरेंट्स नेवर यूज्ड टू टेक लोन. आई कैन नॉट रिमेंबर 15-20 साल पहले कोई लोन लेता भी होगा. जिसकी अपनी जितनी सेविंग होती है लोग उसी पे करते थे जो सही बात करते थे, है. एंड स्टिल दे मैनेज टू डू करेक्ट. एवरीथिंग. लेकिन अभी ये सारे 3-4 फैक्टर्स दैट आर व्हाट आई फील कि एक तो बैंकिंग में लोन जल्दी मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, आपका पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे परचेजिंग पैटर्न में देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज. सो एज आई मैंशन कि पहले जैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती थी लेकिन एक्सपेंसेस भी कम होते थे. अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, सेविंग ज़्यादा हैं, लेकिन एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं. स्टिल पीपल फेल टू सेव करेक्ट. एज मच दे सपोज टू. सो आइडली वॉट आई फील कि जैसे हमारे पेरेंट्स जो थे, जो दे यूज़ टू सेव मोर, उनका पहले ये रहता था कि इतना जोड़ लो, बाकी जो बचेगा अपना घर चलाएंगे, अपने को मकान बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बाहर भेजना है, ये करना है, वो करना है. एंड फाइनली जब तक भी बाय द टाइम वी गाइस ग्रोन अप 20-22 साल में आए तो इतना कॉर्पस बन गया था कि वी मैनेज टू एंजॉय द Correct. रीजनेबल और लैविश लाइफ, आई कैन से दैट. लेकिन अभी भी इफ somebody wants to plan like that, so there are many investment opportunities. One should start saving early, and probably I feel by the age of 45-50 they would be independent. This is my take on it. ओके. Probably. ओके. Shailesh bhai would like to add something और on. हम बात करेंगे उस. Sure, sure. Vijay bhai, I mean, Rohit bhai has already mentioned most of it. The first thing तो हमारा यही है कि most of the people today, poor or middle class, we don't actually know our budget. हाँ, एग्जैक्टली. राइट. तो हर महीने वो स्ट्रगल करते हैं. इसलिए सबसे पहले आपको तो वो करना है कि आपके घर का एक्सपेंसेस का बजट होना चाहिए कि भाई कि मेरा हर महीने का एक्सपेंस कितना, उसको आप रिकॉर्ड करो, चाहे ऐप पे करो, चाहे नोटपैड में करो, डायरी में करो, रिटर्न. तो वो पहला तो वो होना चाहिए आपका. तो तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितना आपका खर्चा है और आपकी इनकम कितनी है, आप कितना सेव कर सकते हो. तो आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया तो आप वो एक सर्टेन फिगर डिसाइड करो कि आप कितना बचाओगे, एंड देन वो उसको अलग से निकाल के रखना Yeah, है. that's right. आपको अलग अकाउंट में डालना है या म्यूचुअल फंड में डालना है या कहीं पे भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट में डालना है, तो आप वो अलग से निकाल के रख दो. उसके बाद जो बचे हैं पैसे उनको खर्च करो. तो Okay. ये जो है कि वो इट शुड बिकम अ हैबिट. तो हमारे माँ बाप जो थे वो तभी वो उस वक्त में उनकी हैबिट थी कि नेचुरली उनकी हैबिट थी वो सेविंग करने की. वो लोग तो खर्चा वो लोग मिनिमम करते थे. Yeah. आज हमारे पास एवेन्यूज बहुत हैं स्पेंड करने Yeah, के. that's right. तो इस और हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ गई हैं. तो इसलिए हम लोग एक्सपैंड करते हैं कि भाई हमको रेस्टोरेंट में खाना है. पहले हम लोग रेस्टोरेंट में खाने भी नहीं जाते थे. सही बात है. राइट. इट वाज वंस इन अ ब्लू मून कभी. राइट. Yeah. तो आज हमको बिल्कुल आई मीन ऑलमोस्ट एवरी वीक जाना है. स्विगी जोमेटो चाहिए घर पे. राइट. इवन इफ यू नॉट गोइंग टू द रेस्टोरेंट यू वांट स्विगी जोमेटो एट होम. और लाख रुपए का मोबाइल चाहिए जैसा रोहित भाई ने बोला. सही बात है. तो ये हमारे एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं. तो नथिंग रॉन्ग इन दैट. आप एंजॉय करो लेकिन आप इंश्योर करो कि आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हो पहले. तो यही डिफरेंस है रिच और मिडिल क्लास में और पुअर क्लास में कि वहाँ पे वो लोग रिच इन्वेस्ट करते हैं पहले, उसके बाद में वो लोग स्पेंड करते हैं. हम पहले स्पेंड करते हैं, बाद में बचा अगर तो कुछ तो सेव करते हैं. सही बात है. Yeah. जैसे हमने बजट का बात किया ना, Yeah. तो इंडियन सिनेरियो में लाइक हमने हमारे माता पिता को देखा है. इवन दो मेनी ऑफ आवर जनरेशंस पेरेंट्स वेर नॉट दैट एजुकेटेड, बट पैसे की समझ थी उनको कहीं ना Yeah, कहीं. बिल्कुल आई थी. रिमेम्बर छोटे से घर में मम्मी एक रादर देन बैंक अकाउंट होगा तो ऐसे होता था कि बैंक अकाउंट के लिए लेडी को अगर बैंक अकाउंट खोलना होगा तो पति को तो पता होगा कि इसके पास बैंक अकाउंट. तो क्या करती थी, कोई डब्बे में चावल के डब्बे Yeah, में that's डाल के right. रख देती थी. एंड शी यूज्ड टू मैनेज. Yeah. एंड जैसे बोलते हैं ना, वुमन एंड मदर जो दे आर द बेस्ट मैनेजर्स. उनको पता होता Yeah. है कि क्या है एक घर का पूरा खर्चा और Yeah. कैसे करना है, बच्चों को कैसे निकाल के ये देना है, एंड ऑल दोज थिंग. सो सेविंग्स के बाद जो एक इंस्ट्रूमेंट आता था जब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाज द फिक्स्ड डिपॉजिट.
एक 10,000 रुपये रख लिए एंड दे वे सो हैप्पी, 7-8% इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके बियॉन्ड कभी सोचा ही नहीं। एक हमें याद है बचपन में एक कुछ चिट फंड या सोसाइटी होती थी, सो अभी भी लॉट ऑफ होता है, पीपल यूज्ड टू इन्वेस्ट, ये होता है मैंने अभी भी चिट चलता बोल दिया ये करके, एंड दैट वाज वन वे ऑफ दिस थिंग। है। ये सारी चीज़ें वो ज़माने में थी, अभी इतना एक्सपोजर नहीं था। फिर काफ़ी सारे टाइम आप सुनोगे कि चिट फंड वाला सडनली स्कैम हो गया, भाग गया लेके, देन लोअर मिडिल क्लास होगा तो वो तो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज चंक ऑफ योर मनी इज गॉन। ये सारी चीज़ें, दिस इज़ हाउ वी ग्रू अप। सो सेम चीज़ें अभी आज के जनरेशन में स्टिल, जैसे मैंने पहले भी बोला, 70-80% आर स्टिल देयर, वही इसमें जी रहे हैं। अगर आप देखोगे रूरल इंडिया हुआ या बॉम्बे में भी कहीं जाओगे, तो मेरे हिसाब से या आप दोनों से मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे डिफेंस में भी हम हैं, जैसे वी जॉइन एट 17-18 इन NDA से लेके INA, एंड देन सब्सिक्वेंटली जब पैसा आता है, व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ इन्वेस्टिंग? कोई भी, एक कहीं गरीब बच्चा भी कहीं रह रहा हो या कोई भी हो, what should be the strategy for in to have a good finance this thing, ताकि फ्यूचर में जाके जब हम बात करेंगे आगे, तो फ्यूचर में जाके यू आर सिक्योर्ड कि ठीक है करके। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू? आई पर्सनली फील, बिकॉज आई डिड द सेम, दैट एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग, हाँ, मैंने अपना जॉब जो है, मैंने अपना हायर एजुकेशन ख़त्म करके आई 23-23.5 साल में शुरू कर ली थी। एंड और जब मेरे को लगा दैट आई एम गुड एट माई जॉब एंड आई वुड बी एबल टू सर्वाइव, सो आई स्टार्टेड सेविंग और आई स्टार्टेड डूइंग माई इन्वेस्टमेंट बाय एज ऑफ 26-27 अप्रॉक्सीमेटली। बट ये आपको किसने सिखाया था, एडवाइस दिया ये था? किसी ने, ये बिल्कुल किसी ने Okay. सिखाया था। होता क्या है कि जब आप, वी ऑल नो, वी ऑल हैव वर्क समवेयर और द अदर, जब आप किसी कंपनी में जॉब शुरू करते हो, स्पेसिफिकली किसी अच्छी या बड़ी कंपनी में करते हो, तो बैंक वाले आते हैं, आपका सैलरी अकाउंट खोलते हैं, बराबर। देन यू गेट एन ऑप्शन कि भैया आपको HDFC में खोलना है, आपको ICICI में खोलना है, हम बोलते हैं HDFC में खोलना है, तो वो आपको बताते हैं सर दीज आर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव, ये हमारा अपनी कंपनी के साथ टाई अप है, आप ये करोगे, अपने HR से पूछ लो, इतना इतना पैसा डिडक्ट होगा और ऑन एन एवरेज इतना रिटर्न आ जाएगा। उस टाइम इतना समझ नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि चलो जितनी सैलरी आ रही है उसमें से इतना तो निकाल ही सकते हैं, नॉट एन इशू। तो कुछ पैसा फिर वो PF में चला जाता है, Correct. कुछ अपना MF में चला गया। Correct. तो वो आजकल कंपनीज खुद ही एडवाइस करती हैं, ईच एंड एवरी कंपनी हैव अ टाई अप विद ऑल दीज बिग बैंक्स। वो सैलरी अकाउंट सभी के HDFC में है, ICICI में होता है, तो वो लोग आते हैं और अगर वो कुछ सलाह दे रहे हैं, सो वन शुड नॉट इग्नोर दैट, उसको थोड़ा सा समझो, डिस्कस करो, और इमिडिएटली जैसे ही आपको स्कीम समझ आए 2-3 महीने बाद ऑटो डिडक्शन पे अपना अकाउंट लगा दो और भूल जाओ। जब आप उसको चीज़ को रियलाइज़ करोगे 10-12-15 साल बाद, आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअली में कुछ पैसा जोड़ लिया है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि जैसे ही आपकी नौकरी शुरू हो या आप कुछ बिजनेस करो, जो भी कमा रहे हो उसका एटलीस्ट 20-25% जितना दे सकते हो उसमें जोड़ना शुरू करो। कल को शादी हो जाएगी, अगर आपका जो पार्टनर है, इफ़ शी इज़ ऑल्सो वर्किंग और ही इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कोई ब्रेक नहीं आएगा या रुकावट नहीं आएगी, इट वोंट बी डिस्टर्ब्ड। Otherwise, still you can go with the same amount, and you end up making some reasonable corpus Correct. 15-17 years down the line. So this is what I feel, this is how I started, and yeah. Okay. So basically right age, Ideally, वही मैंने आपको बोला, जैसी 25-27 साल से हो जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज 30 तक तो शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कोई PhD करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कुछ बेचारे 2-3 अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो 25-26-27 हो जाता है बहुतों के साथ। तो उस चक्कर में अगर 28-30 तक तो शुरू कर लेना चाहिए, बिकॉज बाय द टाइम होता क्या है कि आप 30 के हुए, आपने नौकरी शुरू करी, घर वालों का प्रेशर आता है भाई शादी करनी है, हाँ सही बात है, आपने शादी करी 3-4 साल में बच्चे होंगे, बाय द टाइम बच्चे भी हो जाएंगे तो 45-48 तक आप आते आते एटलीस्ट आपके पास कॉर्पस होगा कि आपको आगे बच्चों की अपनी टेंशन नहीं रहेगी थोड़ा सा। तो 30 तो होना चाहिए, मतलब शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही आप नौकरी में जाओ या बिजनेस में जाओ, यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस कि भाई पैसा कहाँ लगा सकता हूँ मैं अपने इनकम में से। शैलेश भाई, योर टेक ऑन दूसरा एस्पेक्ट, कि जैसे रोहित भाई ने कहा कि एक स्टेज पे समवन एडवाइज्ड हिम एंड नॉट मेनी, जबकि पैसे के बारे में हर बंदे को मालूम है इंडिया में, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पैसे के बारे में नहीं मालूम होगा, राइट? किसी को कोई एडवाइस देता है तो
वो उसमें लग जाता है सोच के. Yeah. सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पूरे सिस्टम में फाइनेंशियल नॉलेज इज अ डर्थ समवेयर, कि लोगों को ज्ञान नहीं है? दैट इज, ये पॉडकास्ट का मकसद भी Yeah. वही है. तो अगर वो होता है तो देन माय सेकंड क्वेश्चन विल बी कि दो तीन इंस्ट्रूमेंट है जो हम ट्रेडिशनली ये करें, सेविंग 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 सेविंग. सो व्हाट वुड बी योर टेक कि कैसे डिफरेंट रहे? You mentioned it absolutely right कि हमारे स्कूल्स में जो है हमको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते हैं. सही बात है. That's How right. to manage money. I remember the only thing that I learned in school was in standard 4 when I had that receipts and liabilities जो था, वो receipts and expenses Yeah. का था, वही एक था. उसके बाद मैंने कभी कोई प्रैक्टिकल ये नहीं देखा कि इसको भाई कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा हमने, लेकिन इसको यूज कैसे करें Yeah, वो सही बात प्रैक्टिकल है. हमने सीखा नहीं. राइट. तो एक हाथ जो 7th स्टैंडर्ड तक कुछ तो मैथमेटिक्स थी जो हमको किसी कुछ काम थी, उसके बाद जो हमने सीखा वो कभी अप्लाई नहीं किया. राइट. तो ये हमारे स्कूल सिस्टम में एक्चुअली होना चाहिए, जहाँ पे हम बच्चों को सिखाएं कि अपना मनी कैसे मैनेज करें. Yeah. That's राइट. right. बराबर. ये बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी. तो यहाँ पे वो ये बताते हैं कि आप ठीक है, आप शुरू करते हैं लाइफ अपनी शुरू करते हैं तो आपके पास फंड्स नहीं होंगे अनलेस योर फादर इज अ बिग बिग मनी True, मेकर. true. राइट. तो अगर आप शुरू करते हैं अगर, राइट, तो आप जो भी पैसा आप बनाते हो आप उसको सेव करो, और आप वो उसको आप बोलते हो एक्टिव इनकम. Yeah. That's right. करेक्ट. बराबर. क्योंकि आप यू आर वर्किंग फॉर दैट मनी. राइट. एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ इनकम विच यू हैव विच इज कॉल्ड पैसिव इनकम, Passive जहाँ पे income. पैसा आपके लिए काम करता है. तो आपको ये ट्राई करना है कि आपका जो एक्टिव इनकम है ये आपके लिए पैसा जनरेट करे, पैसिव इनकम. Yeah. तो That's right. उसके लिए क्या क्या एवेन्यूज अवेलेबल हैं आपको देखना है. फर्स्ट ऑफ कोर्स सबका ऑप्शन होता है एफडी, लेकिन आपका एफडी क्या है, आपका इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता. सही बात. That's right. सीनियर सिटीजन हो आप तो भी आपको मैक्सिमम 9% मिलता है, अदरवाइज 7%. Yeah. That's right. राइट. तो ये है. तो उससे और नेक्स्ट ट्रेडिशनली इन्फ्लेशन वुड बी 8 7 Seven, 7% के ऊपर ही होता ऊपर ही है. होता ऑन है. 8 के ग्राउंड तो आसपास. 10% से ऊपर है. ऑन ग्राउंड एक्चुअली रियलिटी में अगर आप देखें तो 10% Yeah. से ऊपर है, बट गवर्नमेंट फिगर 7 to 8% 7 to बोलते 8 रहता है. हैं. राइट. तो ये है. देन उसके बाद आपका है नेक्स्ट ऑप्शन होता है गोल्ड. अभी ट्रेडिशनली हम लोग क्या घर पे लेडीज जो हैं वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, बट अगेन उसमें आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है, Yeah. प्लस उसका मेकिंग चार्ज सही एंड ऑल बात. दैट थिंग कम्स इन. तो आजकल एवेन्यूज हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हो. उसको जैसे आप जो स्टॉक्स और या म्यूचुअल फंड खरीदते हो वैसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हो डिजिटल. Yeah. तो वो आप कर सकते हो. तो ये तीसरा है आपका रियल एस्टेट. Yeah. अब रियल एस्टेट में भी आप क्या है कि आपको अगेन लिक्विडिटी नहीं है, सही बात. और उसके लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए, आपको बैंक का लोन चाहिए होता है. कमर्शियल अगर चाहिए तो अगेन वो है. तो ये, और प्लस अगर आप प्लॉट ले रहे हो तो अगेन आपका कोई इनकम नहीं आता उसमें, ना ही आप उसको यूज़ कर सकते हो. इंक्रोचमेंट के इश्यूज है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये काफ़ी सारे इश्यूज हैं. राइट. तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है आपका REIT करके है, जो अगेन आपको डिजिटल वे में आप मैनेज उसका कर फुल सकते फॉर्म क्या है छलिल भाई? हो. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ओके. तो ये आप जैसे ही होता है, आप कमर्शियल जो है ना वो स्टेट्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आपके यूनिट सबको देते हैं. Yeah. तो आप उसको बाई करो, आपको कैश फ्लो मिलता है. Yeah. सो समथिंग लाइक म्यूचुअल फंड के जैसे. सिमिलर टू दैट Kind of. principles. रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड समझ लीजिए. तो ये एक ऑप्शन है. एंड देन ऑफ कोर्स आपके पास जो स्टॉक्स इक्विटी के Yeah. म्यूचुअल फंड्स होते हैं. राइट. और लास्ट आपके है कि डायरेक्ट स्टॉक्स. सो ये हर एक के अपने अपने रिटर्न्स हैं और Okay. अलग अलग रिस्क इन्वॉल्व है. तो आपको पहले असेस करना है कि आपको कितना आप रिस्क ले सकते हैं. राइट. और उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड देखना है. रिस्क और रिवॉर्ड दोनों देखना है. उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं. ओके. राइट. Okay. और शुरू करने का एज तो है फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट हैविंग योर इनकम यू शुड Yeah. पुट सम पुट मनी. सम मनी. अगर आप 20-22 साल के उम्र में आप शुरू करते हैं कमाना, तो आपको तभी शुरू करना चाहिए. उसके पहले आपको गोल सेटिंग करना चाहिए कि आपको घर खरीदना है या बाइक खरीदनी है या मैरिज के लिए पैसे जुटाने हैं. हर एक के अलग अलग गोल्स होते हैं. तो आपको गोल सेटिंग करनी है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होती है. करेक्ट. At the same time, Yeah. we should not forget about medical insurance Yeah. and life insurance. Term क्योंकि आपकी insurance, प्रोटेक्शन That इन्वेस्टमेंट is के more पहले आपको important. वो भी है. Yeah. करेक्ट. करेक्ट. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक है. तो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, जो हमने फाइनेंस एजुकेशन की बात की,
सो ये क्वेश्चन को हम पार्क करेंगे लास्ट के लिए फिर से, बिकॉज वी नो दैट आप दोनों ने भी काफ़ी मेहनत की है, एंड देन एक ऐसे एप्लीकेशन है वेयर वी ऑल कैन गेट सम एजुकेशन ऑन दैट, वो हम आएंगे वहाँ पर। क्या होता है ना कि व्हेन यू टेक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, इंडिया का अगर आप डेमोग्राफी देखोगे तो वहाँ स्ट्रगल होता है जीने के लिए, Yeah, लाइक that's right. आपका जो इनकम आता है, एक्सपेंसेस। सो डू यू फील दैट कि कितना भी इनकम घर पे आओ, कभी कभी स्टेबल इनकम भी नहीं होता है, स्टिल पीपल हैव स्कोप टू सेव कर सकते हैं? बिल्कुल। वो तो देखो क्या है विजय भाई, थोड़ा सा अपनी हैबिट बनानी पड़ती है वो, क्योंकि दैट इज हैबिट व्हाट। इज़ द बिगेस्ट थिंग। अब आप बोलोगे कि अभी क्या, अभी जैसे एवर सिंस जोमेटो केम इनटू अ पिक्चर, स्विगी केम इनटू अ पिक्चर, people started ordering food from outside वेरी very ट्रू, frequently. वेरी ट्रू। I know few guys who order at least once or twice a day. There are many. वंस Those और who are ट्वाइस अ डे, हाँ। yeah, because हम those who are वर्किंग। those who are living away from family, or those who are working in corporates and don't have much time, so they are ordering. But if we change those small habits, so definitely that we guys can save. वेरी Rather ट्रू। than आप हफ्ते में एक बार, अभी क्या है, अभी आप देखो थोड़ा सा कल्चर, बिकॉज एवरीबडी इज अर्निंग। ट्रू। आज आज आप मार्केट में जाओ, लोग सामान ले रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, मॉल्स आर फुल, एवरीबडी करेक्ट। स्पेंडिंग। लेकिन वो ये, वो थोड़ा सा अगर खर्चा कंट्रोल में आए कि हफ्ते में, हर हफ्ते रेस्टोरेंट नहीं जाना, 15 दिन में एक बार चले जाओ, 20 दिन में एक बार चले जाओ, 6 महीने में मोबाइल ना बदलो, साल में हाँ, गाड़ी ना बदलो। हाँ। क्योंकि अभी क्या है, जब से एप्पल का फ़ोन आया, पीपल हैव टू चेंज इट एवरी ईयर। करेक्ट। जैसे ही नया मॉडल आता है, पीपल वांट टू बाय दैट, हाँ, लाइन में खड़े हो लाइन जाते हैं में खड़े लोग। हो जाते हैं, एंड दैट बिकम अ स्टेटस सिंबल कि वेरी भैया ट्रू। मेरे पास सबसे नए वाला वर्जन है, अभी देख तेरे पास कौन सा है, काइंड ऑफ। सो दिस इज व्हाट आई फील कि थोड़ा सा अगर ये 2-4 छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी बचेंगे, तो सही आई बात है। बिलीव पीपल वुड एंड अप सेविंग समथिंग और द अदर। पैसा तो बच सकता है, बस वो बचाना ज़रूरी है। इस पे देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टैंड या अप कॉमेडी एप्पल पे, रवि या गुप्ता बोल के, या शुद्ध देसी कॉमेडी, आई फॉलो हिम। या तो उसने एप्पल पे किया कि सेइंग कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास बट या मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे एप्पल फोन चाहिए, स्टेटस सिंबल का। इज डन अ गुड कॉमेडी ऑन दैट। अभी आप देखो ये जितने इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, लाइक आई ऑल्सो ट्रैवल विद माई फैमिली, तो अभी आई हैव सीन मैनी गाइज जो अपना क्रेडिट कार्ड पे, इवन देयर आर पीपल जो अपना पर्सनल लोन लेते हैं कि हाँ, चलो भाई 4 लाख का लोन ले लिया, 3.5 लाख का लोन ले लिया, करेक्ट। 1 सवा साल में, 2 साल में किस्त उतार देंगे, 15-18 हज़ार EMI बनेगी। लेकिन वही है ना, वाई यू हैव टू गो, मतलब एटलीस्ट इस तरीके के एक्सपेंसिव के लिए आई डोंट थिंक दैट वन शुड टेक अ क्रेडिट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो तो एक कहावत है ना कि सी देयर आर टू सेट ऑफ स्कूल ऑफ या थॉट्स। एक ऐसे है कि जो कमाओ उड़ाओ ऐश करो और आज जीना है करके, या एंड देयर इज सेकंड सेट ऑफ पीपल जो कमाओ, एंजॉय और सेव करते रहो, एंड देन फिर जो फर्स्ट थॉट वाले बोलेंगे कि क्या फ़ायदा जब 60 में सब होगा, तुमने तो ज़िंदगी नहीं जी है देखो करके। उसमें भी दो चीज़ें हैं, उसमें हाँ, भी दो फैक्टर, दो उसके भी दो पहलू हैं उस कॉइन के। पहला ये है कि अब आप जिस सिटी में रहते हो, लेट्स हाँ। टेक, आप मुंबई में रहते हो या मैं दिल्ली में रहता हूँ, आज मेरे पास अपना घर है, एंसेस्ट्रल होम है, ठीक है, मेरे को एक रीजनेबल एक फिक्स इनकम है, एक बिजनेस से और एक पैसिव इनकम है, काइंड ऑफ मान लो, है ना, और मेरे पास अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक रीजनेबल कॉर्पस है, तो ठीक है, फिर तो मैं अपनी लाइफ मच बेटर जी सकता हूँ करेक्ट। एज़ कम्पेयर टू अदर। लेकिन अभी कोई है जो मुंबई में नहीं रहता था, कहीं बाहर से आया है, यूपी से आया, बिहार से आया, किसी और स्टेट से आया, उसे मुंबई में अपना घर बनाना है, सही बात। सो डेफिनेटली ही हैज़ टू स्ट्रगल मोर एज़ कम्पेयर टू अदर्स। हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं आइडिया। प्रायोरिटीज है। अगर जिसके पास मकान भी है, धंधा भी चल रहा है, सो डेफिनेटली ही कैन स्पेंड मोर। या वो तो सोचना पड़ता है, बस वही सारी सोच का फ़र्क है। करेक्ट, करेक्ट। तो इस पे ही वो काफ़ी वो डिबेट वाला एक या टॉपिक होता है कि क्या ये नहीं नहीं, करेगा। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पूरी उम्र किराए पे ही रहते हैं, आई हैव सीन मेनी हाँ, गाइस। या सो वो भी मेरा एक हाँ क्वेश्चन था कि यू नो जैसे ठीक है, अब आ गया तो मैं पूछ ही लेता हूँ या कि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, लाइक वी वेयर ऑफ ट्रेडिशनल ओपिनियन कि अगर आप रह रहे हो तो खुद का घर घर चाहिए तो होना करके, चाहिए। बिकॉज वी कम फ्रॉम दैट थॉट। या बट देर आर लॉट ऑफ पीपल, हमने ही देखा है हमारे सोसाइटी में ही, दैट इज़ वॉट दी थॉट प्रोसेस। आई डोंट नो या कितना सही है कितना गलत है, या लेकिन वो एग्जाम्पल मैं शेयर करूँगा कि हम दोनों जब घर खरीद रहे थे वहाँ, सो वी बॉट अ हाउस इन 2001। शैलेश ने पहले लिया था, एक 2 BHK आती थी 15 lakhs प्रोबेबली, एंड Yeah. मैंने लिया था 1 BHK 10 लाख रुपए। हाँ ये 2003 की बात है।
अब हमने तो वहाँ इन्वेस्ट कर लिया। सेम एक बंदा है हमारे कॉम्प्लेक्स में, वो उसने तभी बताया था व्हेन आई हैड नोन हिम, उसने बताया था कि घर मत ले, यही कॉम्प्लेक्स में रेंट पे रहेंगे करके। उसने हमारे ही सोसाइटी के बाहर जो रोड पे हॉलमार्क बोल के है, वहाँ पे उसने 2 दुकानें ली, एंड वो दुकानें इज लाइक स्मॉल, एक एक 10-10 लाख का, 11-11 लाख का दुकान था। 2 शॉप्स ही परचेज, 22 लाख हो गए। अब वो रेंट पे हमारे यहीं 3 BHK पे भी रहता है आज भी। अब उसको वहाँ से जो इनकम आ रहा है 5 लाख रुपए का, उसको रेंट आ रहा है दोनों ये, और हम लोग तो वही स्ट्रगल मार के ऑफिस जा रहे हैं, EMI दे रहे हैं, और हम ये। सो हिज थॉट ऑलवेज वाज कि रेंट पे रहना। आज भी वो रेंट पे रहता है। तो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट, कि रेंट पे रहे या घर खरीदे? This is exactly the mindset which a businessman has. ओके, ये जो वर्किंग क्लास का माइंडसेट है और बिजनेसमैन का माइंडसेट है, ये दोनों यही यही डिफरेंस है। वो ये सोचता है कि मैं पैसे कैसे कि बनाओ? मुझे हाँ एसेट क्रिएट करना है जो मेरे लिए इनकम जनरेट करे। हम लोग जबकि क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए लाइबिलिटी जनरेट कर रहे हैं। अब वो आप घर खरीद रहे हो, वो घर आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आपके जेब में वो पैसे नहीं डाल रहा है। आप ओके, हर महीने आप जॉब कर रहे हो, उससे पैसे लेके आप आपके जेब से पैसे निकाल रहा है। जबकि आपके दोस्त ने जो किया, हाँ, उसने प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई की, उससे रेंट उसको मिल रहा है, भले उसने 5 लोन लाख लिया हो रुपए उसके लिए, रेंट मिलता है आज के डेट बट में। उसका जो रेंट है, कमर्शियल का जो रेंट है, वो उसका लोन पे कर रहा है, प्लस वो उसका जो बचा हुआ है उससे वो रेंट पे रह रहा है। सो इट इज कवरिंग हिज लाइबिलिटी एज और वेल। वो तो नौकरी पे भी नहीं जाता है। बोला तुम जितना कमाते हो तो मेरा रेंट में आ जाता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द रिच गेट रिचर एंड हाउ द पुअर पीपल बिकम पुअरर। सो अगेन, यही फिनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। हाँ, तो जो खुद का घर लेते हैं, सो प्रॉब्ली वो आजकल बहुत थॉट प्रोसेस बदल रहा है कि काफ़ी लोग रेंट पे रहते हैं, प्रॉब्ली मे बी जो भी है, तो अपना वही अभी भी वो वर्किंग क्लास माइंडसेट में ही आई पर्सनली फील, मतलब जो मेरा थॉट प्रोसेस है, प्रॉब्ली इट माइट बी ट्रेडिशनल, लेकिन इसमें आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता ट्रेड ऑफ करना पड़ता है ना। कि आपको लगता है ये मैं दुकान ले रहा हूँ, कल को इस दुकान से 5 लाख किराया आएगा और मेरे घर की 1 लाख इंस्टॉलमेंट निकल जाएगी, तो दैट इज़ फाइन, हाँ, अगर आपकी प्रेडिक्शन वैसी है। हाँ, लेकिन अगर वो प्रेडिक्शन उल्टी पड़ गई उल्टी पड़ गई। तो फिर वो, एग्जैक्टली, वो जो ट्रेड ऑफ है हाँ, शायद। वो ट्रेड ऑफ वन हैज़ टू बी परफेक्ट इन दैट। ओके, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो अभी हम लोग मान के चलें, आज आपने दुकान ले ली, ठीक है, आपकी जितनी सेविंग थी, और उस दुकान से आपकी जो एक्सपेक्टेड इनकम थी, भले आप उसे रेंटल से बोलो या आपको वहाँ पे कुछ भी काम करना था, आपको नहीं आई, पैसा तो गया। वो पैसा अब कल को घर का रेंट भी देना है, करेक्ट, आइडली देखा जाए तो फैमिली को भी सिक्योर करना है। लेकिन अगर वही आपका ट्रेड ऑफ चल गया कि 2 दुकानें मिल गई मकान के दाम पे, दोनों दुकानों पे काम भी चल गया, किराया भी आ गया, सो वही है, जिसका जैसा ट्रेड ऑफ चल जाए, ट्रेड ऑफ चल रहा है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो मैथमेटिक्स फिट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कौन से एज ग्रुप में हो उसके लिए। आज मैं इस एज में जाके मैं नहीं सोच सकता, हाँ, सही बात है। यही अगर मैं 20-22 साल का होता और मेरे पास एक लमसम होता, जैसे भी होता, सो प्रॉब्ली आई कुड थिंक ऑफ चलो ये दुकान लेते हैं, मकान की भी क्या जरूरत है, करेक्ट, मकान तो अभी चाहिए ही नहीं। करेक्ट, सो वही है सारा, इट्स ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ। ट्रू, ट्रू, ट्रू। अभी एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज मनी अकॉर्डिंग टू यू? यार आई पर्सनली फील कि मतलब मेरी अगर जितनी ज़रूरतें हैं फाइनल, मतलब इफ़ माई फैमिली इज़ हैप्पी, आई मैनेज टू फुलफिल देयर नीड्स, माई पर्सनल नीड्स, सो दैट इज़ मनी फॉर मी। करेक्ट, क्योंकि पैसा तो जितना है उतना कम है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब जैसे अब किसी को अगर खाने का शौक़ है, किसी को घूमने का शौक़ है, किसी को मूवी देखने का शौक़ है, किसी को नए कपड़े लेने का शौक़ है, पहले वो 1 ले पाता था, अब 4 ले पा रहा है, पहले साल में 1 बार घूमने जाता था, अब 4 बार जा पा रहा है। करेक्ट, सो ही इज़ रिच फॉर हिमसेल्फ एट लीस्ट। करेक्ट। सो मनी इज़ ऑल अबाउट दिस, आपके सारे शौक़ पूरे हो रहे हैं, सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वरना पैसा तो व्हाट्स योर टेक? उसकी तो कोई लिमिट नहीं। I mean, I will go to the Yeah. concept of it. Money is an idea. ओके, Money is a पैसा concept एक सोच basically. है। हाँ, पैसा एक सोच है. It is anything of value basically, right? Now in today's world, every money what we have, we call it the rupee or the dollar. It is actually an instrument which is backed by the sovereign state, बराबर, right? तो वो सॉवरेन स्टेट बोलती है कि भाई कि ये जो है ये एक यूनिट है जिसको आप लेके आप चीजें खरीद सकते हो, ट्रांसैक्ट कर सकते हो। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हाँ, बार्टर होता था, या coins गोल्ड and कॉइन्स all, होते gold थे, coins.
तो आज हमारे पास हर एक कंट्री का अपना करेंसी है और उसको वो लोग बैक करते हैं गोल्ड के साथ, एसेट के साथ, या फिर कोई और पेट्रोल जैसा डॉलर है अभी आज पेट्रोल के साथ होता है, क्रूड ऑयल के Yep, साथ होता है, that's right. तो अलग अलग बैकिंग होती है। तो उसके हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनको कितना पैसा सर्कुलेशन में रखना है। तो इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट है कि तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे प्रिंट करती है तो उसकी वैल्यू डाउन जाती है, अगर कम पैसे सर्कुलेशन में होते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ज़्यादा हो तो यही है, तो ये जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम Yeah. ये करती है। आप देखोगे अभी 2000 का नोट वगैरह आ गया, उसको सर्कुलेशन में से Yeah. निकाल दिया, करेक्ट। जैसी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई Yeah. तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो That's सेम वे गवर्नमेंट की अपनी Yeah. कंस्ट्रेंट्स होती हैं, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो जहाँ पे उनकी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती है तो उनको फॉरेन करेंसी ज़्यादा Yeah. देनी पड़ती है, तो इसलिए Trade वैल्यू, deficits. Yeah. इसलिए आपकी रुपये की वैल्यू गिरती रहती है। That's तो right. जैसे आपके पास एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी तो आपकी रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ, गवर्नमेंट वो उसको मैनेज करती है डिपेंडिंग की कंट्री की स्टेट कैसी है, करेक्ट। राइट। अभी कमिंग टू द कॉमन मैन, ये कैसे मैटर करता है, क्योंकि वो दैट डिटरमाइंस कि मैं क्या चीज़ बाई कर सकता हूँ। अगर रुपये की वैल्यू गिर रही है तो मैं वो सेम चीज़ जो मैं एक साल पहले खरीद सकता था Yeah. वो आज मैं नहीं खरीद नहीं सकता। खरीद So- सकता। दैट इज इन्फ्लेशन ईटिंग इनटू योर Yep, yep. अर्निंग्स। तो अगर आप मनी को देखो, सो मनी इज़ नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट, इज़ नॉट अ गुड। बैंक में पैसा रखने का फ़ायदा नहीं, घर में पैसा रखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन हमारी इंडिया में और डेफिनेटली अक्रॉस ऑल कंट्रीज, अक्रॉस ऑल जोग्राफीज देयर इज़ एन इन्फ्लेशन रेट। हमारे इंडिया में 7-8% से चलता है। तो आज जो 100 रुपये की चीज़ है, अगले साल वो 93 की रह जाएगी उसकी वैल्यू, उसके अगले साल उसमें 7-8% का और कम हो जाएगा और कम वो। हो जाएगा। तो आइडली मनी इज़ नॉट गुड एज एन इंस्ट्रूमेंट। आप उसे बैंक में रखो, घर कहीं पे पे भी रखो, इट वोंट एट एनी वैल्यू। सो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट साइड मनी इज़ नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। मनी को हमेशा कन्वर्ट करके, ट्रेडिशनली क्या होता है, या हम लोग या इंडियन फैमिलीज या सिनेरियो में या हम बहुत खुश हो जाते हैं घर पे अगर हम पैसे रखते हैं ना या कि 2 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए कहीं, सिर्फ वो फैमिली मेंबर्स 4 लोग को पता होगा, एंड एवरीवन इज मेंटली सो हैप्पी कि 4 लाख रुपए रखा है करके। करेक्ट। सो तो प्रॉब्ली आपका हमेशा सोच ये होना चाहिए कि आप ये देखो कि इन्फ्लेशन कितनी है, तो आपका पैसा जो है अगला आप साल वो उस रेट पे ग्रो हो रहा है क्या, इन्फ्लेशन को Yeah. बीट कर रहा है क्या। तो आपको वो एसेट इसलिए यूज करना चाहिए जो इन्फ्लेशन को, तो अगर वो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आज 10 साल के बाद में भी आपकी उसकी वैल्यू बनी रहेगी। क्योंकि आप जब 10 साल में देखो सही आप बात है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है Yeah, तो that's right. जो रुपी है वो जो चीज़ें आज खरीद सकते हो उसकी आधी दाम हो गई है करेक्ट, 10 सही साल बात में, राइट। लेकिन आपकी अगर जो वैल्यू, अगर पैसा अगर 10% पे कंपाउंड कर रहा है तो आज भी वो आपको वो चीज़ें उससे ज़्यादा ही Yeah. आप खरीद सकते हो। वही जो अभी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी डियर टू मी, बिकॉज ये फौजियों के लिए डिफेंस ये। तो जब हम फौज ज्वाइन करते हैं, वॉट एवर एज वी ज्वाइन, जैसे हम एकेडमीज ज्वाइन करते, वी स्टार्ट गेटिंग स्टाइपेंड वगैरह, स्टाइपेंड मिलता है। तो पहला सेविंग्स वगैरह तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं था, तो पहला होता बाइक लेना एंड ऑल दोज थिंग्स, फिर जैसे जैसे अपॉइंटमेंट होते हैं वी गेट डिसेंट मनी। हमारा एक है प्रोविडेंट फंड, DSOPF बोलते हैं जिसको, एक चंक ऑफ मनी उसमें चला जाता है, एंड लोग बाकी के पूरा सेविंग्स या FD में डाल के रखते हैं, सो बहुत सारे लोग आज के डेट में भी बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑलमोस्ट 80% ऑफ जो भी फौजीज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एंड इनका फिक्स इनकम होता है। आई वोंट से, मैं कभी सैलरी बोलना पसंद नहीं करता हूँ फौजियों का, इट्स ऑल अबाउट पैशन एंड वॉट एवर यू गेट। नाउ द थिंग इज कि आपको और कोई सोर्स ऑफ इनकम, पैसिव इनकम, जैसे शैलेश ने बात भी किया था, उस पर हम बात करेंगे आगे भी, वो भी नहीं है, ठीक है। तो एंड दिस गोज फॉर एवरीवन, बाहर भी, जो नॉट ओनली फॉर फौजीज। तो मैं आपसे सम बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं वहीं पे फंसा हूँ, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट वो हो गया। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि MBA में हमने ही पढ़ा था, सो व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट लेमैन डेफिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड, फिर हम इक्विटी जिसको बोलते हैं ना, आप लोग तो बड़े प्यार और इससे बोलेंगे इक्विटी, बट सो मेनी पीपल मे नॉट बी नोइंग। सो ऐसे जो 4-5 चीज़ें हैं ना, या टर्म इंश्योरेंस हुआ, मेडिकल इंश्योरेंस, अगर इसके बारे में अगर आप एक लेमैन टर्म में इफ़ यू कैन टेल टू पीपल कि भैया इक्विटी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट, बिकॉज
आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, मेरा एक गुड कलीग, मतलब समवेयर रनिंग कलीग है, पैसे है, ये है, जैसे स्टॉक मार्केट बोलो ना, बता रही है तो जुआ है भाई, ये या इसमें नहीं जाएंगे करके। सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन ये छोटे छोटे सिंपल टर्म में कि मैं और अर्नव हम दोनों समझ सके ऐसे। तो व्हाट इज योर डेफिनेशन? तो स्टॉक मार्केट की हम बात करें या बाकी जितनी एसेट क्लासेस हैं वी हैव इन द मार्केट, तो अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट का अगर आप पिछले 15-20 साल का डेटा उठा लो, और वेदर इट्स अ पब्लिक बैंक और अ प्राइवेट बैंक, आप एफडी का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो तो हार्डली ऑन अ हायर साइड 8% जाता है। 8% भी बराबर। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5, 5.5 से 8% चलता है। फिर अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी आपका 8.5 से 9% चलता है। पिछले 8-10 साल में कुछ 11-11.5% दे गया गोल्ड लकीली। और अगर यही हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स आपका 13.5-14% दे जाता है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होता है, एक एक फंड हाउस है, मान के चलो आप एक फंड मैनेजर हो, आई एम अ फंड मैनेजर, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया हम फिक्स डिपॉजिट में नहीं करना चाहते, वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट यू, हम अपना पैसा आपको देंगे, बराबर। आप इसको शेयर मार्केट में लगाओ, यू हैव अ नॉलेज, हमें उससे कुछ एक लमसम कमा के दो, लेकिन वो लमसम एफडी से ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम इन्फ्लेशन बीट कर पाएँ। ओके, इन अ परफेक्ट। लेमैन टर्म बिल्कुल ऐसा ही है परफेक्ट। कि एक आदमी जिसको मार्केट की थोड़ी समझ है, कई सालों से मार्केट में काम कर रहा है, वो पब्लिक से पैसा लेता है, पब्लिक से उसके ऊपर एक एक्सपेंस रेशो लेता है, पब्लिक का पैसा लगाने का, पैसा कमा के देने का, और वो जो पैसा बनता है एफडी का, एफडी से ऑलमोस्ट डबल बनता है ऑन एन एवरेज। अच्छा, मतलब ओके। एफडी का जो अपर लिमिट है वो 8% है, वो म्यूचुअल फंड की लोवेस्ट लिमिट है 8%। म्यूचुअल फंड शुरू ही 8% से होता है ऑन अ लोअर साइड, 7.5 से 8, और एफडी जाता वहाँ तक है, और म्यूचुअल फंड 8 से 13.5% सो दे रहा है बेसिकली कुछ अच्छा। एक आदमी है जिसको आपने सब पैसे दे दिया, क्या, आज वो हम उसको फंड हाउस के नाम से जानते हैं, बिल्कुल एचडीएफसी हुआ, बिल्कुल ब्लैक रॉक, जो भी हुआ। बिल्कुल ओके, बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल। परफेक्ट। तो ओके, सो वी वेयर कि आप गोल्ड के बारे में बता रहे थे, म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे थे, हाँ, और तो कोई एग्जाम्पल होगा तो हम पॉडकास्ट में उसको बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, अगर आपके पास जो प्रेजेंटेशन है ऐसे कुछ हुआ। सो ये एक एग्जाम्पल जैसे आप बता रहे हो ना, या हाँ हाँ, तो एक तो जैसे हमने एफडी की बात करी कि 5.5 से 8% ऑन एन एवरेज जो चलता है। जब बैंक को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है तो बैंक एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, तो तब हमें 8% मिल जाता है। गोल्ड है आपका 8.5 से 11% चल रहा है, पिछले 10 साल की एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। और यही अगर आप म्यूचुअल फंड लो तो एक बहुत ही रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड है हमारे इंडिया का, मोतीलाल ओसवाल, वी हाँ, ऑल आर फेमिलियर विद या दैट, वी ऑल आर फ्लेक्सी फेमिलियर कैप, विद दैट। वो 13.67% उसकी 10 साल की एवरेज गई है। तो आइडली म्यूचुअल फंड, बट हाँ द रिस्क इज़ इन्वॉल्व देयर, क्योंकि वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, कंपनीज़ के भाव ऊपर नीचे जाते हैं बेस्ड ऑन हमारी इकॉनमी कैसी चल रही है, जीडीपी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है, कंपनीज़ की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है इन टर्म्स ऑफ कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो देर आर मैनी फैक्टर्स। ओके, ओके। एंड नाउ कम्स म्यूचुअल फंड हो गया, जिसने भी जो बेसिक आपने बता दिया। नेक्स्ट कम, काफ़ी लोग बोलते हैं अरे म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, स्टॉक में डाल, इक्विटी। सो व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड एक काइंड ऑफ बास्केट हो गया, ओके। जिसमें जैसे अगर मैं एक फंड मैनेजर हूँ, मैंने 40-50 स्टॉक उठाए, उसको मिला के मैंने एक फ़ंड बना दिया, सब में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया कि सर जितनी भी इंडिया की अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, 30-40-50 कंपनी, सब में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दिया, और उससे एक मैंने रिटर्न जनरेट करना शुरू कर दिया। उसको डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं हम लोग। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही तो तो दूसरा। दूसरी ज़्यादा कर देगी, एक ने -2 दिया, दूसरी ने 4 दे दिया, तो मेरी एवरेज वहाँ पे ठीक ठाक बन जाएगी। बराबर। लेकिन इक्विटी हो गया डायरेक्ट इक्विटी, कि आपने कुछ डायरेक्ट अपना स्टॉक में खुद पैसा लगाया डायरेक्ट इक्विटी में, रेदर देन आप फंड मैनेजर के पास गए कि बोलो भैया ये मेरा पैसा है, तो अपने हिसाब से अपनी समझ ओके, से तो म्यूचुअल फंड में लगा दे, मेरे को रिटर्न दे दियो। डायरेक्ट इक्विटी ऐसा हो गया कि आपने खुद ही खुद ही हमने। आपने मार्केट को समझा, आपने स्टडी करी, जो आपको स्टॉक समझ आए, आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला। देर आर मैनी गुड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ज़ेरोदा है, आपका ग्रो है, आपका एंजल वन है, आपने डीमैट खोला, अपने अकाउंट में पैसा डाला,
वहाँ से जोन सा स्टॉक आपकी समझ से आपको समझ आया, आपने उसमें बाइंग करी, आपको लगा भाव ऊपर चला गया, आपने सेल किया, प्रॉफिट बना लिए। तो उसमें सारा डायरेक्ट है, बट यू शुड हैव अ स्किल सेट फॉर दैट, एज सिंपल एज दैट। सो व्हाट इज डीमैट अकाउंट? चलिए डीमैट अकाउंट बोले तो उसको डीमैट स्टैंड्स फॉर डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। ओके, मतलब पहले ज़माने में क्या होता था, आपके जो भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आपका एफडी भी हो, तो उसकी आपको सर्टिफिकेट मिलती थी, बराबर, याद है, राइट। करेक्ट। तो वैसे ही आपकी शेयर्स की भी आपको सर्टिफिकेट मिलती थी कि आपके पास इतने यूनिट्स हैं, आपने इतने पर्टिकुलर इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं। तो ये पहले सब फिजिकल हुआ करता था, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था, फिजिकल लेना देना। करेक्ट, यू करेक्ट। शुड टेक वीक्स टू फॉर एक्चुअली टू एक्सचेंज दैट टू फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो इसीलिए जब हमारे यहाँ पे जब सब कुछ जब कंप्यूटराइज हुआ, तो एक्सचेंज ने तब क्या किया, ये सब उसको डिमेटेरियलाइज फॉर्म में डाल दिया, मतलब डिजिटल फॉर्म में डाल दिया। तो आजकल सब कुछ क्या होता है कि वो फिजिकल जो अगर है तो फिजिकल इसमें अगर होता है तो उसको भी कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल शेयर्स जो है वो डिजिटल फॉर्म में एक्सचेंज होते हैं। तो क्या होता है कि ये सारे जो डीमैट जो आपके शेयर्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, ये एक जगह पे स्टोर होते हैं जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी। जैसे तिजोरी बोलते हैं ना, तो एक तिजोरी जैसे ही तिजोरी है जहाँ पर आपकी स्टोर होती है। जैसे आपके स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन है, CDSL है अभी। तो करेक्ट। ये सब जो है ना सेंट्रल डिपॉजिटरी, तो ये यहाँ पे वो एक्चुअली वो स्टोर होती हैं। अब ये जो है ये आपके अकाउंट के साथ लिंक होती है, डीमैट अकाउंट के साथ लिंक होती है। ओके। तो जब आप ऑनलाइन जाके आप चेक करते हो अपने डीमैट अकाउंट में, तो वो आपको लिंक करके बताता है कि आपके इतने शेयर्स आपके अकाउंट में हैं। तो आप जब भी ऑनलाइन कुछ खरीदोगे, चाहे वो एफडी हो, आई मीन चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो शेयर्स हो, या गोल्ड भी हो, आजकल डिजिटल गोल्ड हो या REIT, तो ये सारी चीज़ जो है आपके डीमैट अकाउंट में जाके स्टोर हो जाते हैं। आप वो उसको ऑनलाइन आप कभी भी देख सकते हो। ओके। तो इट बेसिकली जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। जैसे फिजिकल पैसे होते हैं तो आप उसको आप डिजिटली देखते हो, सेम वे आप जो एसेट्स हैं आपको आप ऑनलाइन देख सकते हो, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। वो आपका बैंक अकाउंट जैसा है, वैसे ही डीमैट अकाउंट है। हिस्टोरिकली बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा ना जब पेपर ट्रांजैक्शन। अभी 3 दिन पहले आई वाज गोइंग थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पेज पे एक न्यूज़ आया था कि नॉट इंडिया का नहीं था, कहीं और का स्टॉक मार्केट, कि किसी को वो उसके दादाजी के ज़माने का समथिंग गॉड रिलायंस एंड के ही, शेयर्स। वो तो इंडिया में हुआ था, ये बाहर बताया था, ओवरनाइट ही बिकेम सम करोड़पति, कितना तो या उसमें। हाँ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हाँ हाँ बहुत आए दिन सारे मतलब सुनने मिलता है होते ना, हैं। ये हाँ सारा करके। हाँ ओके। तो सेकंड थिंग इज, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि बहुत रिस्की अफेयर है, स्टॉक मार्केट एकदम रिस्की होता है, पैसे डूब जाता है। कोई पैसे बनता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर, लेकिन द रिस्क अटैच, व्हाई व्हाई मैं तो पीपल यही से इट इज़ बोलूँगा रिस्की? विजय भाई, ड्राइविंग रिस्की है। ऑफ कोर्स। अगर आपको पता है या ड्राइविंग कैसी करनी है तो आपको रिस्की लगता है ड्राइविंग। हम्म। आपने अगर सीखा है ड्राइविंग, आज अब तो एवरीडे ड्राइव करते हो, राइट, वर्क के लिए, करेक्ट। राइट, क्योंकि आपने सीखा है, आपने इतना प्रैक्टिस किया है उसको और आप चला रहे हो, राइट। तो आपने आपने अब सीखने के बाद में आपके लिए इट्स अ सेकंड नेचर टू यू। आप बात करते करते, मेरे साथ बात करते करते आप ड्राइव करते हो, करेक्ट। राइट। तो आपको मतलब उतना वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। सो सेम वे शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है। अगर आप सीखोगे नहीं बराबर। और मतलब सेफ्टी जो प्रिकॉशंस नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, राइट, जो रिस्क मैनेज करना है उसको सीट आप रिस्क मैनेज नहीं करते हो, आप डायरेक्टली एक्सीलरेटर पे सीधा पैर लगाते हो विदाउट एक्चुअली टेकिंग इट अकाउंट कि आप आपको कहाँ पे हो, आप कौन से स्पीड पे चलना है, कौन से गियर पे चलना है, आपने कुछ नहीं सीखा, राइट, दैट्स और आपने जस्ट गाड़ी दौड़ा दी, तो आपका एक्सीडेंट होना जायज़ है, राइट। तो करेक्ट। सेम वे मार्केट में भी है। तो आपको इसलिए एक मेंटर का लेना ज़रूरी है जो आपको कोच करे कि आपको कैसी कंपनी चूज़ करनी है, राइट। अगर आपको डायरेक्टली करना है, अगर अगर आप कहते हो कि मुझे इसमें देखना ही नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए, या करेक्ट। राइट। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दीजिए, लेकिन उसमें क्या है कि आपको लिमिटेड कमीशन रिटर्न्स है, और 15 से लिमिटेड रिटर्न 20% होगा। 15 से मैक्सिमम। 20% आएगी। लेकिन आपको अगर लगता है कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, राइट, और मेरे पास टाइम है, मैं इसको टाइम डिवोट करना चाहता हूँ और मुझे बेटर रिटर्न चाहिए, मुझे 15-20 रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे करोड़ों बनाने हैं विद इन 10 साल के टाइम फ्रेम हो या 5 साल के टाइम फ्रेम हो,
मुझे बनानी है, आपके अगर गोल ये है तो आपको फिर सीखना पड़ेगा और Correct. उसके लिए टाइम देना पड़ेगा और कोच लेके उसको सीखना पड़ेगा ताकि आप वो वेल्थ बना सको। और इसकी एक सबसे अच्छी बात जो है ना, आज आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप दुकान खोलोगे, ऑफिस लोगे, किसी को एम्प्लॉय रखोगे, कुछ ना कुछ काम करोगे, है ना, और उसको एटलीस्ट आप कोशिश करोगे कि 1 साल सस्टेन करके देखूं कि चलता है नहीं चलता, ये सही धंधा बात। बंद तो नहीं करना पड़ेगा। सही बात। म्यूचुअल फंड में, इसमें इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, वाईफाई चाहिए, और कहीं पे भी आप हाँ, बैठ सकते हो आज कहीं पे भी बैठ के। और दूसरी चीज़, आपको वाईफाई लैपटॉप के साथ अगर एक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, सो यू हैव एन एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, करेक्ट 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 है ना? करेक्ट करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसमें आइडली होता क्या है कि जितने भी सर्विस क्लास होते हैं, कुछ लोगों का मकान या अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ मिल जाता है, सही बात। सो उनकी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ नहीं रहती एक एज के बाद। उनको हम्म। पता है कि चलो जो है ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे कि वो पूरी उम्र फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जोड़ते रह जाते हैं, पहले मकान बनाते हैं, फिर गाड़ी लेते हैं, फिर बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाते हैं, और जो सेविंग्स होती हैं वो सब निकल जाती है। अब फिर एक रिटायरमेंट की एज मुझे पे ऐसे आके, लग रहा है मेरी बात क्यों कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो एज है अभी। अच्छा, हो गया क्या बच्चों की शादी? नहीं ना। या ऑन अ लाइटर नोट। तो उसमें फिर होता क्या है, इसमें मार्केट में क्या है ना, अगर आप घर पे बैठे हो, यू आर रिटायर्ड, आपने ये स्किल सीख लिया, हम्म। तो जब जब अपनी इकॉनमी ठीक चलेगी, मार्केट ट्रेंडिंग होगी, आप अपने लैपटॉप पे बैठ के घर में आराम से एक पीसफुल एनवायरनमेंट में आप कुछ ना कुछ बना पाओगे। यू डोंट नीड एनी हेल्पिंग हैंड, आपको कुछ नहीं चाहिए। यू ओनली नीड अ गुड मेंटर, ओके यू ओनली नीड अ गुड टेक्नोलॉजी, यू वुड बी Okay. एबल टू मैनेज दैट। ओके। तो एक बहुत बड़ी एज है Very- जो बाकी बिजनेसेस में किसी में नहीं है। अच्छा, Yeah. सही है। तो अभी ना आई एम अ लेमैन। Yeah. अब मैंने डीमैट अकाउंट खोल लिया। अब मैं ठीक है, मैं सबसे सुन रहा हूँ ये ब्लू चिप है, ये है, इसमें डालो उसमें डालो, मैंने डाल लिया। दैट वाज बेस्ड ऑन माय, बोलते हैं ना, एक एंजाइटी और यहाँ वहाँ, और मेरे पास थोड़ा 10-20-25 हज़ार है, डाल दिया। सो इन ऑर्डर टू बी मोर इन्फॉर्म्ड, अगर मैं सोचूंगा ठीक है, मैं ये सही लग रहा है, एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई नो सो मेनी पीपल, इवन लेटेस्ट वन ऑफ माय कलीग who resigned, and वो भी स्टार्टेड ट्रेडिंग, एंड बहुत सारे लोग तो अगर एक नॉर्मल बंदे को इज इट वन रिक्वायर्ड कि आपका एजुकेशन बहुत होना चाहिए, या अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करोगे क्या ध्यान में देना चाहिए? आपने जैसे बोला कि मेंटर होना ज़रूरी है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। तो अगर एक कोई भी बंदा छोड़ छाड़ के यहाँ आना चाहे, सो व्हाट शुड बी द बेसिक, बोलते हैं ना, टू डू लिस्ट या चेक लिस्ट उसके ध्यान में होना चाहिए कि ऐसे इसमें घुसते हैं करके? सो व्हाट वुड बी सिंपलेस्ट एडवाइस? बिकॉज काफ़ी लोग चाहते हैं दिल में ना, एवरीवन वांट करेक्ट करेक्ट। इसमें जैसे एक चीज़ ऐड करूंगा, फिर शैलेश भाई कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ ऑलरेडी चल रहा है, यू ऑलरेडी हैव एन इनकम फ्रॉम सम अदर सोर्स, तो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके यू कैन मैनेज इट अलॉन्ग, यू कैन डू इट पैरेलली। ओके। तो कुछ अच्छा चल रहा है, जस्ट कंटिन्यू विद दैट। सो जैसे शैलेश Yeah. भाई ने पहले बोला था ना, एक्टिव और Yeah. I'll park that question. You have to answer that. ये just I'm taking a context out कि आपने जैसे बोला था active passive income. So can this be termed as a passive income? एब्सोल्युटली। Okay. जो हमें साइड से आ रहा है, जो हमारे मेन स्ट्रीम से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला चीज़ तो ये आपने बोला था कि किसी को अगर मतलब जॉब कर रहे हैं, इसमें से इसको छोड़ छाड़ के आना है, तो पहला तो आपको ये देखना है कि अगर आप जॉब छोड़ देंगे तो आपके एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं, आपके पास इतने पैसे हैं क्या जो आपके खर्चे चला सकते हो, क्योंकि आप इमीडिएटली मार्केट में आओगे तो आपको इमीडिएटली इनकम तो नहीं बनेगा, सही बात। राइट? तो पहला तो आपको इसलिए ये करना है कि आपको जॉब करते करते आपको सीखना है, राइट? और इसके साथ में आपको पैसा बनाना है कि जब आप इतने पैसे बनाओ कि आपके खर्चे निकल जाए, मंथली इनकम निकल जाए, बराबर। मंथली एक्सपेंसेस निकल जाए, तब आप सोच सकते हो, मतलब कंसिस्टेंटली आप साल 2 साल करके देखो आप, क्योंकि 2-3 साल कम से कम आप करनी चाहिए, ताकि आप मतलब एक साइकिल जो है मार्केट का पूरा कवर, क्योंकि मार्केट एक जैसा ही नहीं रहता, सही बात। राइट? तो कभी ऊपर कभी नीचे, तो जब तेजी में आप तो बना लोगे, लेकिन जब मंदी आएगा तो आपको 6-6 महीने भी अब कोई
कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉसेस पे लॉसेस होंगे, तो आपको वो झेलने की ताकत होनी चाहिए। तो इसीलिए ये है कि आपको पहले, आपको जॉब है, आपका इनकम स्टेबल इनकम है, तो आप उसके साथ में आप ये साइड बाय साइड ये Yeah. देख करो हम्म और देखो कि आपकी कैसी हो रही है। अगर आप इनकम आ रही है, कंसिस्टेंटली बन रही है, तो 4 साल 5 साल कर लिए आपने, और फिर जब आपको अपनी स्किल्स से आपको पता चला कि आप कंसिस्टेंटली बना पा रहे हो पैसे, जब उस लेवल पे, और आपकी कोई लाइबिलिटीज नहीं, जैसे आपके बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, और पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ जो है, सारे आपने फैक्टर इन कर लिए कि ये सारे चीज़ आप हैंडल कर सकते हो आपके पैसे इनकम से, जॉब छोड़कर, तभी आपको जॉब छोड़नी चाहिए। Yeah. ओके ओके आइडली ये है कि आप अपना नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग पैरेलली, यू कैन मैनेज इट। ओके आपको ओके एक बार स्किल सीखना है, उस स्किल पे काम करना है, वंस यू आर गुड विद दैट, यू कैन मैनेज इट पैरेलली। सो बेसिकली Absolutely. बेसिकली टू समराइज, क्यों मैंने क्वेश्चन पूछा ना कि आज आज के डेट में बड़ा सा ट्रेंड है, बिकॉज Yeah. यू नो सेंसेक्स इज लाइक 78 Yeah. नाउ, एंड सबको ऐसे लगता है, एंड व्हाई नॉट, यू नो, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एवरीवन वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट। तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप में अपना अपना, जैसे शार्क टैंक हुआ या कहीं Yeah. पे भी, एवरीवन वांट, आज के डेट में नोबडी वांट टू गो टू कॉर्पोरेट एंड वर्क एंड किसी और के लिए ना, वो एक माइंडसेट, एंड प्रॉब्ली जेन अल्फा वगैरह में तो और भी ये हो जाएगा, यू नो। लेकिन बहुत लोगों का वो वही, इसलिए मैंने वो कंसेप्ट ये किया कि एवरीवन थिंक कि मैं डायरेक्टली जंप मार सकता हूँ, यू नो, Yeah. विदाउट एनालाइजिंग कि मेरे खर्चे कितने हैं महीने के, Hmm. एंड क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगा, ऑल दोस थिंग। Yeah. तो शैलेश भाई, कितना एक कॉर्पस होना चाहिए मिनिमम, लाइक एक सेविंग मेरे पास, सो दैट आई कैन एंटर स्टॉक मार्केट एंड मैं काम धाम छोड़ दूँ? ओके, पहला चीज़ तो ये है कि इवन बिफोर यू कम टू दैट, राइट, कितना सेविंग होना चाहिए नहीं है, पहले आपको ये है कि आपकी एक्सपेंसेस, जो आपकी स्किल लेवल क्या है पहले, ओके, राइट, हाँ, स्किल लेवल, स्किल ट्रू, लेवल आपकी कितनी हो गई है, और सेकंड ये है कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस कितनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है, करेक्ट, पहले तो ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली गलती जो मोस्ट पीपल डू इन द मार्केट इज गोइंग टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, Yeah. हाँ, वो राइट, व्हाट क्योंकि इज फ्यूचर उसमें एंड, वो एक्साइटिंग ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें आप फास्ट पैसे बनाते हो। नहीं तो फिर मैं यहाँ कट करूँगा, तो यू नो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऑप्शन क्या है, क्या है? सिंपल टर्म में, सिंपल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि आप जैसे इक्विटी जो हमने बोली, तो उसमें क्या होता है कि आप एक कंपनी है, राइट, कंपनी का जो, उनको चलाने के लिए उनको कैपिटल लगता है, राइट, जो जो कैश लगता है उनको, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि मार्केट से पैसा उठाते हैं, बराबर, राइट। तो जब आप शेयर खरीदते हो, आप वो कंपनी का एक पार्ट, एक पार्ट खरीदते हो, तो आप वो मार्केट क्या करता है, उसको डेली जैसा बिक्री और सेल और बाई Yes. होती है, तो इसलिए वो आप वो उसके भाव के हिसाब से आप वो खरीदते हो, राइट। तो अब ये कैश जो है वो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, वो ओनर्स हैं, जो यूज़ करते हैं, करेक्ट, तो इसलिए उसको आप बोलते हैं शेयर। तो अब जो जैसे मार्केट में जैसे तेजी और मंदी होगी, उसके हिसाब से उसका भाव ऊपर या नीचे जाएगा, बराबर, राइट, इसको बोलते हैं नॉर्मल इक्विटी जो शेयर है, राइट। अब फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर्स उससे डिराइव होता है, यानी उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो उसकी लगभग वो इक्विटी जैसा ही होता है, मतलब शेयर जैसा ही होता है, लेकिन वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, कि एक फ्यूचर में ये 1 महीने बाद या 3 महीने बाद इस शेयर की वैल्यू इस लेवल पे होगी, तो वो फ्यूचर, तो उसके फ्यूचर प्राइस के ऊपर से एक डेरिवेटिव बनाते हैं उसके, राइट, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर। तो अभी उसमें क्या है कि लेवरेज होता है, ओके, मतलब अभी फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स की बोलते हैं, आपकी कंपनी लेवल शेयर की भी फ्यूचर्स होते हैं, आपकी इंडेक्स की भी फ्यूचर्स होती हैं, ओके, राइट। तो सपोजिंग आपका शेयर, सपोजिंग 100 रुपीज़ का है, तो अगर ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 1 महीने बाद ये शेयर 110 पे होगा, तो बराबर, फ्यूचर जो है उसका स्टॉक Yes. 100 पे होगा, लेकिन उसका फ्यूचर जो है 110 पे 110 पे होगा होगा 3 महीने के बाद, फॉर एग्जाम्पल। 3 महीने बाद, तो वो उसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो अच्छा, उसकी तो हर ट्रेडिंग हो, महीने वो एक्सपायर होता है, Yes. फिर उसको आपको वो एक्सपायर होता है, फिर उसके बाद में अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना होता है। तो अब क्या है कि इसमें आपको डिफरेंस तो वही है, बट लेकिन कि इसमें आपको लेवरेज मिलता है, कि आप 100 के भाव में आप 5 गुना खरीद सकते हो उसमें, आप 500 के शेयर्स खरीद सकते हो
100 के भाव 100 रुपये डाल के, तो ये आप करने जाओगे जब आपके पास, जैसे कि मैंने बोला, आपने ड्राइविंग सीखी नहीं है, आपने सीधा एक्सीलेटर पे पैर लगा दिया, तो आप कहीं पे जाके क्रैश करोगे। तो इसीलिए ये नहीं करना है। Yeah. पहले आपको सीखना है कि पहले इक्विटी जो है शेयर, उसमें आपको पहले हाथ को पहले टेस्ट करना है। वो स्लो में आपको पहले न्यूट्रल पे डाल के 1-2 सेकंड गियर पे सीखना है, गाड़ी कैसे ड्राइव करना है, यू टर्न कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, ब्रेक कैसे लगाना है, ये सारा कुछ पहले आपको सीखना है। सही बात। राइट, ये सब एक्सेस करने के आप जब आप माहिर हो जाओगे, उसके बाद में आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसमें भी ये है कि इसका भी टेक्निक अलग होता है, तो वो आपको अलग से उसको सीखना पड़ता है। राइट, जैसे आपने नॉर्मल गाड़ी रास्ते पे गाड़ी चलाई आपने, आप F1 में जाके compete नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। F1 में compete करने के लिए आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सही बात है। तो सही वैसा है, तो फ्यूचर्स वैसा है, F1 रेस टाइप्स है। Yeah, Okay. राइट, और ऑप्शन जो है वो फ्यूचर का भी डेरिवेटिव है। राइट, और वो बहुत ही वोलेटाइल है, उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो मतलब उसके टाइम वैल्यू पे जो है फटाफट उसकी वैल्यू ऊपर या नीचे होती है। तो ये क्या है कि बहुत एक्साइटिंग लगता है, एंड वो ये कई मायने में लोगों के लिए ये गैम्बलिंग है, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं कि ये Yeah, that's right. उसके जो एनालिसिस और उसके पीछे उसका जो तो ये नहीं है, हाँ मायना ही उसको नहीं। डेल्टा थीटा गामा होता है, जो ग्रीक्स होते हैं, Exactly. जो स्टैटिस्टिकली डिराइव्ड होते हैं, इनको लोग जानते भी नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसमें कूद पड़ते हैं क्योंकि Correct. वो एक्साइटिंग लगता है। जैसे ड्रीम 11 खेल रहे हैं वैसे ही जाके ये खेलते हैं, और इसीलिए लोगों का पैसा जाता है, क्योंकि ऑप्शन में आपके जो पैसे जीरो होते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्ट्रेट अवे Equity जीरो हो में नहीं जाता है ना। फ्यूचर्स में फिर भी इक्विटी एंड फ्यूचर्स में फिर नहीं भी आपके होता। पैसे जीरो नहीं होंगे। फ्यूचर्स में आपके पैसे गिर सकते हैं, क्योंकि वो लेवरेज्ड है। राइट, क्योंकि 100 का 500 में आप खरीद रहे हो, तो यहाँ पे जहाँ पे 10% गिर गया, तो आपका 50% हो गया, कैपिटल 50% गिर गया वहाँ पे। ओह, तो ये इसलिए हाँ, ये मैंने सुना है, काफी लोग वो जीरो हो जाता है ना स्ट्रेट Yeah. अवे आपका ऑप्शन में जीरो हो सकता है, फ्यूचर में जीरो नहीं होगा, बट आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो मैग्नीफाइड है 5 टाइम्स। यहाँ पे 1% गिरा तो आपका कैपिटल वहाँ पे 5% डाउन हो गया। डाउन हो जाता है। Ideally जो एडवाइजेबल है वो डायरेक्ट इक्विटी ही रहता है। इट्स Correct, सेफर correct, एज correct. कंपेयर टू Correct. these two correct. options, और करेक्ट, करेक्ट। बीइंग अ न्यू कमर और अ बिगनर अपना इक्विटी से लार्ज कैप कंपनीज, अच्छी कंपनी से स्टार्ट करें और फर्स्ट गेट एन एक्सपोजर। और इंडिया में एक्चुअली फ्यूचर्स में ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग ही होती है। राइट, फ्यूचर्स आप कर सकते हो उसको, मतलब जैसे उसमें अभी ट्रेडिंग में भी स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, तो आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो, वो स्विंग और पोजिशनल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होती है और उसको करना है। तो ये जो स्विंग ये सब तो ठीक है, जब लोग पढ़ के आएंगे उनके तब के लिए रखते हैं। हाँ, वो काफ़ी एडवांस हाँ, टॉपिक काफी है। हमारे इसमें ना हम सुनते हैं कि निफ्टी है, सेंसेक्स है। सो व्हाट इज निफ्टी? सेंसेक्स तो ठीक है, शेयर मार्केट हमने, तो निफ्टी और इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज निफ्टी एंड व्हाट इज सेंसेक्स इन ब्रीफ? निफ्टी का अगर आप देखो तो निफ्टी 50 जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। अच्छा, उसके बेसिस पे एक वैल्यू ड्राइव करी जाती है, वो बन जाता है निफ्टी 50 इंडेक्स। और जब उसका भाव नीचे की तरफ जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग मार्केट को ऐसे समझते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। जब उसका भाव ऊपर की तरफ जाता है, बाइंग होती है उसमें, तो हम लोग बोलते हैं मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है। अगर एकदम लेमैन को समझना है तो निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पे एक ड्राइव वैल्यू, और उस वैल्यू का जो डायरेक्शन है उसके बेसिस पे गेज द मार्केट। भाव नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि जब उसका भाव गिरता है, टॉप 50 कंपनीज कहीं ना कहीं नीचे आ रही हैं, तो बाकी स्टॉक्स का भाव भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। बाकी जितने 4-5 हज़ार कंपनीज हैं उसमें से मेजॉरिटी नीचे जाने लग जाते हैं। जब निफ्टी 50 में स्ट्रेंथ दिखती है तो मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाती है इन ओवरऑल। ओके, तो अगर लेमैन पर्सपेक्टिव से तो ये दिस इज बिकॉज लेमैन एंड हम बहुत टाइम देखते हैं ना, एक होता है एनएससी और एक होता है बीएससी। एनएससी इज योर नेशनल स्टॉक। व्हाट इज द डिफरेंस दोनों में? मैं एकदम लेमैन पूछ रहा हूँ, सो दैट जो देखेंगे ना। बिल्कुल। अभी आप जैसे आप नॉर्मल आप मार्केट में जाते हो, कुछ भी आपको खरीदना है, राइट, तो आप मार्केट में जाते हो, आपको सब्जी लेनी है या किसी स्टोर में तो आप जाके वहाँ पर पैसे देते हो, आप चीज़ खरीदते हो, राइट। तो अभी आप यही जो हो रहा है, जो आपका मार्केट जो है, ये आपका एक्सचेंज है। एनएससी और बीएससी जो है ये एक्चुअल एक्सचेंज है, जहाँ पे आपका लेन देन हो रहा है। सही बात। तो आपके जो पैसे हैं
राइट। तो ये आपके पास, आप इनिशियली आपने डीमैट अकाउंट खोला है, आपने आपके बैंक के थ्रू खोला है, राइट। तो आपने अपने बैंक के अकाउंट में है पैसे, और आपका बैंक का ही ब्रोकर होगा, या फिर आप मोतीलाल ओसवाल जैसा है या एंजल वन है, ये आपका ब्रोकर होगा, राइट। तो क्या करोगे आपकी, आप जाके ये ब्रोकर अकाउंट में आप पहले आप लॉगिन करोगे, बोलोगे मुझे ये, समझो आप HDFC बैंक का शेयर खरीदना है मुझे, तो आप वो ऑर्डर डालोगे। तो अब वो ऑर्डर जो है आपका ब्रोकर जो है वो NSE को भेजेगा या BSE को भेजेगा, आप चॉइस कर सकते हो। तो ये NSE BSE जो ये एक्सचेंज है, ये एक्चुअल मार्केट है जहाँ पे ये एक्चुअल शेयर्स की अदला बदली होती है। तो आपके पैसे जो हैं वो तो आपका ऑर्डर जो है आपके एक्सचेंज में जाएगा, तो एक्सचेंज मैच करेगा कि भाई विजय भाई को इतने शेयर्स खरीदने हैं इस प्राइस पे, और वो उधर वहाँ पे देखेगा कि सेलर कोई है क्या, तो उस प्राइस पे कोई है जो वो बेचने को तैयार है, तो वो मैच कर देगा, तो आपका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया। तो आपको फिर कंफर्मेशन आएगा कि भाई आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, तो आपके अकाउंट में से पैसे जो है ऑलरेडी डिडक्ट हो गए, वो बाद में ब्रोकर सेटल कर देता है उसको, और आपके शेयर्स अकाउंट में आ जाएंगे। आजकल तो एक दिन में आ जाते हैं T+1 में। ओके ओके, ग्रेट। सेम फॉर सेलिंग ऑल्सो, आप जब सेल करोगे सेम मैचिंग होती है, आपके डीमैट अकाउंट से शेयर जाएगी और एक्सचेंज में जाएगी, तो एक्सचेंज वहाँ से बायर को पहुँच जाएगी, उसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। करेक्ट। सो ना एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। वो 1 लाख रुपए अगर मैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट में डालूं, अगर मैंने सेविंग्स में डाला, आप लोग सोचो ये सेविंग्स पे अटका है अभी तक। सेविंग्स, FD हुआ, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड, ये सो एक जनरल इसमें क्या, वेयर विल दैट 1 लाख रुपी स्टैंड इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स? उसको अगर हम PPT के साथ दिखा सकते हैं सो प्रॉब्ली हाँ, हम लोग उसमें एक्सप्लेन ठीक कर देंगे, ठीक है। एक रफ ये, सो विल इंटीग्रेट दैट। अगर आप साहब लगाओ, अगर आज आप चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वाले पॉइंट को। आज आप FD में पैसा डालते हो, साल का 7% अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अपने को, बराबर, ठीक है। तो मान के चलो आपने लाख रुपए डाला, एक साथ लमसम डाल दिया या 10-10 हज़ार रुपये तोड़ के डाल दिया 10 महीने में, या 8-8 हज़ार करके साल में डाल दिया, ठीक, 96,000 अप्रॉक्स, है ना। 10 साल बाद आपको 7% के हिसाब से वो मेरे आई बिलीव 1,87,000 कहीं जाके बैठेगा। ओके, ठीक है, 10 साल बाद। हाँ, 10 साल बाद, ठीक है। यही अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो और 10-10 हज़ार करके, आई विल गिव यू द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग कि मंथली डालना है, एक साथ लमसम में नहीं डालना। यही अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो इन अ मंथली फैशन, 10,000 एवरी मंथ, इन टोटल 1,20,000 इन अ फर्स्ट ईयर, तो उसका आपका कम से कम 2x 3x बनता है। आपका FD में डबल भी नहीं हो रहा है या डबल के आसपास हो रहा है, वहाँ पे आपका 3.5x या मिनिमम 3x बन जाएगा। नाउ आई गिव यू द रीज़न व्हाई वी आर सेइंग थ्रू म्यूचुअल फंड व्हाई शुड वी इन्वेस्ट ऑन अ मंथली फैशन। मंथली में होता क्या है, म्यूचुअल फंड में हमारी एक NAV वैल्यू होती है, नेट एसेट वैल्यू, वी ऑल आर फैमिलियर विद दैट। उसमें होता क्या है कि मार्केट कभी ऊपर है कभी नीचे है। आपने मान के चलो आपने जैन में आपने NAV लिए 10,000 रुपये के, उस टाइम हमारा निफ्टी बैठा हुआ था 25,000 पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। आपकी जो भी क्वांटिटी आई आ गई, फेब आया, निफ्टी आ गया 24 पे। अब जब आप वो 10,000 लगाओगे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एम आई राइट? यस, सिमिलरली मार्च आया, निफ्टी आ गया 24 पे, आपको और एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल जाएगी। सही बात है। फिर अगला महीना आएगा, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी ऊपर नीचे चलती रहेगी। लेकिन मान के चलो अगर आपने ये पूरा एक ही बार में डाल दिया होता लमसम 1 लाख रुपए में, जब मार्केट एकदम अपना पीक पे थी, तो आपकी क्वांटिटीज कम हो जाती, आपका डिनोमिनेटर छोटा हो जाता। करेक्ट। सो आइडली अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन अ मंथली फैशन अगर हम पैसा डालते हैं, तो उसमें होगा क्या, कभी मार्केट पीक पे होगी, कभी मार्केट में डाउन होगा। तो जब मार्केट डाउन होगी आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, मार्केट में पीक होगा तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन ईयर एंड आते आते आपको एक रीज़नेबल क्वांटिटी मिल जाती है। जब आप मंथली फैशन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो आफ्टर 10 ईयर्स एक रिटर्न आती है, अच्छी खासी आ जाती है। लेकिन यही अगर आप एक बारी में कर दोगे तो डेफिनेटली वैसे रिटर्न्स नहीं आएंगी। अब हम यही हम FD का एग्जांपल लें,
एफडी में डेफिनेटली हम लोग 10,000 करके कभी महीने में डालते नहीं। सही बात। सबको ये लगता है कि चलो लाख रुपए पड़ा है, हाँ, एक ही डाल बार दो, में डाल देते लमसम हैं, में डाल दो। लमसम में डाल देते हैं, कौन इतनी सिरदर्दी लेगा। म्यूचुअल फंड में बेनिफिट ये है, आपका ऑटो डिडक्ट होता रहता है। एफडी में जाके वो ऑटो डिडक्शन का नहीं है इतना, आपको जाके बोलना पड़ता है मैनुअली कि मेरे को एफडी करानी है कहीं ना कहीं। आई एम नॉट श्योर अभी कुछ चेंज हुआ हो हाँ। तो तब जाके वो वैसा होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में डालोगे डेफिनेटली एफडी से ज़्यादा आएगा, और मंथली Okay. फैशन में डालोगे तो और बेटर आएगा। ओके, एंड देन इक्विटी होगा तो प्रॉब्ली, और इक्विटी डिपेंडिंग होगा तो ऑन। इक्विटी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप ये HUL हो गया अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका अपना लाइफ बॉय आता है, या ITC हो गया जिसकी मालबोरो सिगरेट आती है, वी ऑल आर फैमिलियर विद दैट। करेक्ट। अब देखो उन्होंने जो कंपनीज ने रिटर्न दिया है, मेरे ख्याल से ITC ने 2015 से लेके अभी अगर मैं कल तक की रिटर्न देखूं मैं, तो मेरे ख्याल से 2.2 या 2.5x है। सेम विद HUL या HDFC बैंक 3.5x 3.7x। तो वो एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट आपको 3.5x देके जा रहा है। आई एम श्योर। बाकी तो हम वो एग्जांपल के साथ वी विल या इंटीग्रेट इन डेफिनेटली पॉडकास्ट व्हिच वो विल एग्जांपल्स हेल्प, जो भी वी देख हैव रहे दोस हैं एग्जांपल्स, दैट विल दैट्स राइट। हेल्प हियर। तो इक्विटी तो हमेशा ऑलवेज बेटर है, Always लेकिन जैसे better. शैलेश भाई ने बोला, वन शुड हैव अ स्किल सेट टू डू अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो एज इंडियन, जब यहाँ बैठ के विद माई डीमैट अकाउंट, मेरे डीमैट अकाउंट से मैं ग्लोबल उसमें भी खेल सकता हूँ और वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कि उसके लिए कुछ और लगेगा अकाउंट बिल्कुल अकाउंट बिल्कुल। नहीं आप कर सकते हो, सेम डीमैट आज अकाउंट से? आजकल आपको कर सकते नहीं, हो। आजकल आपके बैंक्स भी जो हैं उनके टाइप्स हैं ओवरसीज, तो आपको अलाउ करते हैं वो यूएस मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए। ओके हाँ, ओके। तो यूएस चाइना भी है शायद, तो आपको अलाउ अलाउ करते हैं, बट उनके लोकल बैंक्स के थ्रू ही टाइप्स हैं। तो और कोई ट्रस्टेड नाम हो तो ही बेटर है, क्योंकि आपकी रिस्क कम है आपकी कि वो जो एंटिटी है वो कोलैप्स नहीं हो जाए। तो इसलिए ऑलवेज बेटर टू गो विद अ ट्रस्टेड बैंक ओके डेफिनेटली। ओके। हम और जब जहाँ तक आपने बोला ना, आई मीन वो पहले वाले क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहूँगा। आई मीन देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट। आपके पास अभी सपोजिंग 1 लाख है, Yeah, तो आपकी जो फिनेंशियल सिचुएशन है या आपका एज है वो मैटर करता है yeah, कि आपको वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप सपोजिंग आप सिर्फ करियर शुरू कर रहे हो, आप 25 साल के हो, आप करियर शुरू किए हैं आपने सिर्फ, और आपके पास लाख रुपया है, देन टेक अ फैक्टर लाइक 100 माइनस योर एज। तो आप 25 के हो तो आप 75% आप इक्विटी में डाल दो, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो, 75% आप डाल दो। बाकी के जो है 25% जो है आप उसको डाल दो, एफडी में डाल दो, बॉन्ड्स में डाल दो। बॉन्ड इज सिमिलर टू एफडी, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा परसेंट मिलता है, ज़्यादा 10 to पैसा। 12% yeah, मिलता है, तो बॉन्ड्स में डाल दो। और गोल्ड है आपका तो 10% आप चाहिए तो वो 25% में से आप चाहे 10% गोल्ड में डाल दो, राइट। रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में डाल दो। REITs जैसे हमने बताया, REITs में डाल सकते हो। तो ये अब एवेन्यूज मतलब है। डाइवर्सिफाई अभी कर आप सकते हो। आज यू आर अराउंड 50, राइट। तो आप तो एंड यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू कैन हैव 50% ऑफ एक्सपोजर टू इक्विटी। ओके तो 50% जो है उसमें 25% आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, 25% इक्विटी में डाल दो, डायरेक्ट इक्विटी में, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में डाल दो। या फिर आपको बोलना है कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट में नहीं देखना, नहीं समझ में आता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड में डाल दो Mutual 50%। That is better. वो आपके रिस्क और आपको जैसा रिटर्न चाहिए उसके ऊपर है। ओके ओके। तो परफेक्ट। और सिमिलरली अगर आप रिटायर्ड हो, अब 10 years मे बी इन 60 यू विल रिटायर, राइट। सो एट दैट टाइम यू हैव अ कॉर्पस इन हैंड, तो देन यू कैन सी कि मेरे एक्सपेंसेस जो है, मेरे मंथली एक्सपेंसेस के लिए मेरे को लिक्विडिटी चाहिए, Yeah. तो आप उसके लिए आप बॉन्ड्स या इसमें डाल दो, ताकि आपका वो कैश फ्लो आता रहे, आपको Yeah. रेडीली एक्सेस आता रहे। आपका GSEC है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सेंटर के बॉन्ड्स आते हैं, यू कैन इन्वेस्ट दैट। ओके ओके। एफडी से बेटर रिटर्न दे जाते हैं। टेक्निकली जो व्हाट यू जस्ट सेड अभी आपने बताया, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। Diversification. उसी को डाइवर्सिफिकेशन Correct. बोलते हैं। और आपका रिस्क प्रोफाइल भी है रिस्क कि प्रोफाइल आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो कि आप कंजर्वेटिव हो, तो वो उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना एक्सपोजर रखना है। Yeah. करेक्ट। रोहित भाई, माय क्वेश्चन सब्सिक्वेंट टू ये है कि मैं सपोज मैं 25 में ये करते हैं, बहुत सारे लोगों ने वो बस मिस कर दिया अभी, Yeah. ठीक है। हमें मालूम है कि इंडिया में एज प्रोफाइल इज एवरेज 71, 72, 73 एवरेज, यू नो। और एक
ट्रेडिशनली चलता आ रहा है कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहते थे, हमारे Yeah. ग्रैंडफादर, सब जॉइंट फैमिली होती थी। फिर अभी हमारे जनरेशन में ऐसे है कि वी स्टे विद आवर पेरेंट्स, ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गोइंग फॉरवर्ड अभी से ही हमने न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट देखा है। Yeah. ये Yeah. लॉट ऑफ पीपल, बॉम्बे, पूना, दिल्ली, इवन जब मैं साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ भी मैंने कंसेप्ट देखा कि इट इज़ कॉल्ड नॉट ओल्ड एज होम बट कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स कॉलोनी, जो सब सीनियर सिटीजन्स ही Yeah. रहते हैं। किसी के बच्चे होते हैं, समवन हेल्प, समवन डोंट हेल्प। सो अगर एक बंदे को या बंदी को यंग डे से ये सोच के चलना है कि मुझे टोटली इंडिपेंडेंट होना है, बिकॉज मेरा एवरेज लाइफ इज 71। Yeah. सो व्हाट विल बी योर एडवाइस कि कैसे प्लान करना चाहिए लाइफ को, जो 25 से भी होगा या जो अभी 50 है, 48 है। सो व्हाट आपका क्या एडवाइस होगा कि देखो यार, अभी 25 वाला तो जैसे अभी शैलेश भाई ने भी बोला, हम लोगों ने डिस्कस किया ही। अगर आप अभी जैसे 50 का बोलो या मैं आइडल एज अगर लेके चलूँ, मैंने अभी देखा है जो मार्केट में, और देर आर मैनी गाइज आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू, कि लोग 38 से लेके 42 43 में ऑन एन एवरेज अभी मिडिल एज में जाके सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो व्हाट आई फील कि जब आप 25-26 के होते हो, अगर आज हम लोग कॉर्पोरेट की बात करें, आप गवर्नमेंट जॉब की बात करो, आज के टाइम में 40-50 हज़ार सैलरी सबको मिलती है मिनिमम। सही बात है। 50 हज़ार तो मिल ही रही है, हाँ, इससे कम 40 तो मिल रही है, 40 तो मिल ही रही है। डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में रह रहे हो। दिल्ली मुंबई में तो मिलती है, बाकी शायद बाकी हाँ, जगहों ऑन पे एन एवरेज मिल टायर ही 2 जाता टायर है। 3 में थोड़ी सी कम मिलती होगी, लेकिन हाँ 40-50 सबको मिल रही है। तो आई फील कि जो 25 साल वाला है या 25 से 30 साल वाला है, अगर वो 10-12 हज़ार से भी मंथली करता है, सो ही वुड बी एबल टू मैनेज। लेकिन जैसे आपने और मैंने डिस्कस किया कि अगर कोई 38 या 42 में है और तब करना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा अपना मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए। हार्डली अगर वो 15-17 करेगा, महीने का 17 हज़ार लगा लो, साल का हार्डली मेरे ख्याल से कितना 2 लाख कुछ बनता है। अगर वो इतना मैनेज कर लेगा, सो डेफिनेटली बाय द टाइम ही वुड रीच 53-54, he would have a corpus of around 2 CR, and that corpus would be enough कि आगे जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की शादी, बच्चों की स्टडीज़, ही वुड बी एबल टू मैनेज दैट वेरी इजीली। और अगर कोई 60s में है ऑलरेडी, सो आई एम एज्यूमिंग जो 60 पे ऑलरेडी बैठा है, वो बच्चों की शादी करके उसके करके बच्चे बैठ वगैरह दे और ऑलरेडी या इंडिपेंडेंट। इंडियन सिनेरियो में या हो इंडियन जाता है। सिनेरियो ज़्यादातर हो हाँ, जाता हो है, जाता है ना। तो उसके पास अगर इनफ कॉर्पस है, सो जैसे शैलेश भाई ने भी बोला, हमारे पास सेंट्रल बॉन्ड होते हैं। जब सरकार को पैसा चाहिए होता है, वो अपना बॉन्ड इशू करती है, कभी 10 पे करती है, कभी 12% पे करती है, तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपना सीनियर सिटीजन को तो 9% बैंक से भी मिल जाता है सही बात। कई बार एफडी से। म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा सा ये रहता है कि म्यूचुअल फंड जो अपना एक्चुअल रिटर्न्स हैं वो 3-3.5 साल में ऑन एन एवरेज देना शुरू करते हैं। तो हम लोग अगर डे 1 पे अज्यूम करेंगे कि भाई 10 साल की एवरेज 13% चल रही है और मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे को इससे यार ईयर एंड 31 दिसंबर को मेरे को 13% मिल जाएगा, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब यही है कि अगर आप 60 पे बैठे हो और आप म्यूचुअल फंड में भी करना चाहते हो, तो 3-4 साल का तो होराइजन पकड़ के चलो कि 4 साल बाद अगर आज 1 लाख रुपए लगाया तो 13% के हिसाब से मेरे को 3 साढ़े 3 साल बाद मिलेगा। लेकिन अगर आपका 3 साल का होराइजन नहीं है, आपको ये लगता है कि भैया मेरे को तो जो पैसा है, मेरे को अपना मेडिकल एक्सपेंसेस भी बेयर करना है, मेरे को घूमने का भी शौक है, मेरे को वो सब भी करना है, तो आपको जो पैसा है, यही जो अपनी सेफेस्ट ऑप्शंस हैं, आपका एक और होता है वो पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। हाँ, पोस्ट ऑफिस वाला हम लोग भूल गए, हमने डिस्कस नहीं किया। तो पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। कृषि विकास पत्र आता है उनका एक, करेक्ट। उनके अपने 3-4 साल के कुछ वो आती हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स आते हैं। कृषि विकास पत्र आता है, उसमें कुछ ऐसा है कि आपको क्वार्टरली कुछ इंटरेस्ट आ जाता है। सो देयर आर मैनी इन्वेस्टमेंट प्लान्स। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करो, एफडी में करो, कृषि विकास पत्र में करो, आइडली दीज आर द बेटर ऑप्शन। और सबसे बढ़िया ये है, आप 60 के हो, यू आर फैमिली विद अ लैपटॉप, यू आर फैमिली विद अ वाईफाई, just learn equity market from someone, some great mentor, and start investing directly. तो उससे होगा क्या कि जैसे शैलेश भाई ने बोला, एक स्विंग इन्वेस्टिंग होती है और एक पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है। तो उसमें होगा क्या कि आप मार्केट में, जब मार्केट हेल्दी है, आप मार्केट में पार्टिसिपेट करोगे, आपके पास अपना एक लमसम पड़ा है, बाकी के लिए आपने कृषि विकास पत्र वगैरह सब ये ले लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस बियर हो गए, थोड़ा बहुत घूमने का बियर हो गया, घर का खर्चा वर्चा बियर हो गया, तो वहाँ से आप कुछ एड ऑन निकाल पाओगे।
क्योंकि देखो होता क्या है, ऑन एन एवरेज साल में 12 महीने तो मार्केट नीचे जाती ही नहीं है, वी ऑल नो दैट। करेक्ट। मार्केट साल में 3 4 5 महीने हो सकता है नीचे जाए, रुक जाए, ऊपर ना जाए, लेकिन 3 4 महीने अपने को ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिलती ही मिलती है। सही बात है। तो वो जो 4 5 महीने होते हैं, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग सीखी है किसी अच्छे मेंटोर से या पोजिशनल ट्रेडिंग सीखी है, तो उन 5 महीने में आप एटलीस्ट अपना 7 8 महीने का एक्सपेंस निकाल सकते हो अच्छे से। सो दिस इज़ एन एडिशनल ऑप्शन, क्योंकि जो इंसान घर पे बैठा हुआ है, एक लैपटॉप ही लेना, एग्जैक्टली। और अगर जील है Exactly. सीखने की, सो डेफिनेटली दे कैन मेक मनी। और बहुत सारे लोग हैं जो भी कर ही रहे हैं, आजकल तो लोग मोबाइल से करते हैं। मोबाइल से कर रहे हैं। हाँ, काफी लोग। हाँ, मतलब वही है अभी, अब तो वही है। बेसिकली ये है कि एवरीवन शुड प्लान देयर फ्यूचर, नहीं या तो ऐसे स्टेट में नहीं आना चाहिए कि डिपेंडेंट होना चाहिए बच्चे नहीं, हेल्प नहीं। करेंगे, या बिकॉज यू नो डेफिनेटली दे आर हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में होगा, बट व्हाई टू बी Yeah, डिपेंडेंट yeah. ऑन And myself and Chilesh bhai, we both know many guys, those who are already retirees and they are into a direct equity and they are making मेकिंग मनी, they are making good money out of it, but they have learned it first. दे हैव लर्नड वो लोग अपना उन्होंने साल 2 साल 1.5 साल दिए है मार्केट को समझने में। Correct. क्योंकि मार्केट का भी क्या है ना, अपना 4-6 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आएगी मार्केट की हेल्थ, कि मार्केट कैसी दिख रही है, आपके ब्रॉडर इंडाइसेस निफ्टी 50 500 बैंक निफ्टी, आपने सेंसेक्स बोला, चलो वो सारे अच्छे हैं, उनमें से या 1 2 अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री चल रही है मार्केट में, मार्केट में 120-30 इंडस्ट्रीज़ हैं, Correct. ऑयल एंड गैस है, रिफाइनरीज है, कंज्यूमर गुड्स है। अभी पिछले कुछ सालों में लोगों ने डिफेंस में और रेलवे में बहुत पैसा बनाया है। करेक्ट। फिर कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, फिर उस इंडस्ट्री के पीछे कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट मतलब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पुश आ रहा है, या कंपनीज की कुछ ऑर्डर बुक्स हैं, या वॉट एवर इट्स रीज़न। जैसे अभी हमारा जब इंडिया में कोविड आया, पूरी दुनिया इम्पैक्टेड थी, और वी वर लाइक वी वर ट्राइंग टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज Correct. फॉर मेडिसिन सपोर्ट एंड ऑल। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो मोदी जी केम फॉरवर्ड एंड से आत्मनिर्भर भारत। अब वो आत्मनिर्भर भारत में हम लोग डिफेंस में भी घुसे, Correct. हम लोगों ने कोविशील्ड भी बनाई। तो अभी क्या, हम लोगों ने डिफेंस में घुसे, और जब ये डिफेंस में घुसे तो लास्ट 2-3 साल में हम सब ने रैली देखी है। हाँ, रैली देखी, very true. पीपल एंडेड अप मेकिंग 7x 8x इन द डिफेंस कंपनीज ओनली। आई मेड HAL में या तो वही है थोड़ा सा, अगर मार्केट अच्छी मिलती है आपको, उसके अंदर अच्छी इंडस्ट्री मिलती है, उसकी इंडस्ट्री के पीछे आपको रीज़न पता चलता है क्यों इंडस्ट्री में भाव क्यों आ रहा है, अभी गवर्नमेंट पुश आ रहा है, और आर देयर एनी अदर रीजंस, और उसके अंदर आपने अगर अच्छी कंपनी पकड़ ली सही टाइम पे, और अच्छी वैल्यूएशन जो मार्केट में हम लोग बोलते हैं, और उस कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि एक बड़ी ऑर्डर बुक है हमारे पास, या गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, देन डेफिनेटली you can create yes. you can invest in such kind of companies in a direct equity, and you can make some reasonable corpus for you in coming years. Good. Last few questions. Like, moving back to your question, Yeah. right? कि किस एज में कितनी इन्वेस्टमेंट टारगेट होनी चाहिए, Yeah. टारगेट होनी चाहिए। इट्स लाइक अगर आप करियर शुरू कर रहे हो एट द एज ऑफ 22 हो या 25 में शुरू करिए, योर टारगेट शुड बी 50% ऑफ योर इनकम शुड गो इनटू इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। Okay. 50% दैट शुड बी योर टारगेट, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज तभी नहीं है। I mean, लोग आजकल खर्चे में बिलीव कर जाते हैं वहां पर ना, Absolutely. सबके साथ फोन ऐसा लेना ही है होता है। ये। क्योंकि आप तो भी ठीक है 50% आपने सेव कर, टेक होम है आपका सपोजिंग 50,000 आपने, चलो आपने करियर शुरू करी, तो आजकल तो आईटी वालों का भी हो जाता है 40-50,000 तो स्टार्ट हो जाता। चलो आपकी 30,000 भी अगर सैलरी है, कोई और फील्ड में भी है 30,000 भी अगर, राइट, तो भी आप 50% आप तो 15,000 तो सेव ही कर सकते हो। सही बात। बाकी के जो 15,000 है, आप उसमें आप जो करना चाहे हो आप कर लो, करेक्ट, राइट। करेक्ट। लेकिन 15,000 आप 10,000 सेव कर लो, वैसा तो आपका कुछ तो सेविंग होना चाहिए। सेविंग होना चाहिए। दैट इज व्हेन यू स्टार्ट। फिर आप मिडिल एज हो जहाँ पे आपकी फैमिली है वगैरह, हाउसिंग लोन है वगैरह है, तो आप शायद 50% नहीं कर सकते, तो आप 20% अपना इनकम शुरू सेव करो। आप मतलब आपकी तभी तो आपकी सैलरी बढ़ गई होगी, चलो Yeah, लाख that's रुपए की right. सैलरी होगी आपकी, तो आप उसमें से 20% 20,000 तो सेव ही कर सकते हो। ट्रू। तो सेव 20,000 वो लेके आप इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में डालो, या फिर इक्विटी में डालो, या फिर बॉन्ड्स खरीदो, जो भी आपको पसंद करे, Correct, पसंद correct. आए वैसे। सो बेसिक अभी तक जो क्रक्स है, लाइक वी हैव स्पोकन ऑलमोस्ट 100 मिनट्स नाउ, ये है कि सेविंग्स करो अर्लियर एज Yeah, में yeah. एंड डाइवर्सिफाई, Earlier एंड वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है Yeah, फाइनेंस, definitely. एंड आई थिंक इट गोज बैक टू बेसिक कि स्कूल्स Yeah. में ही स्टार्ट कर दे, जो हम लोग Yeah. अभाव ये है।
टू क्विक क्वेश्चन, यू नो, हाउ इम्पोर्टेंट आप लोग को लगता है कि जैसे हमें कोई इंश्योरेंस देने आता है ना, लाइफ टर्म इंश्योरेंस, मेडिकल, पहले हम Yeah. कतराते हैं, पहले तो उसको कैसे अवॉइड करें बंदे को ना, बट सिंस आप लोग एक्सपर्ट हो, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कि लाइफ टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस ये Yeah. इंसान लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? क्विक आंसर फॉर दिस. बिल्कुल लेना चाहिए, ओके. बिल्कुल लेना चाहिए। अब मेडिकल इंश्योरेंस का आप देखो, आज अब कोविड में हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, मेरे घर में भी काफ़ी इशू हुआ था। आज आप हॉस्पिटल में जाते हो, अब डेफिनेटली अब भगवान ना करे किसी को कोई बड़ी दिक्कत आ जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको मिनिमम आप मैक्स में जाओगे, अपोलो में जाओगे, डेफिनेटली यहाँ पे मुंबई में भी चेन है उनकी, सही बात. है ना। आज अगर आपको एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, आपका एक हफ्ते का भी लाख सवा लाख रुपए चला जाता है। डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ अ मनी, लेकिन अगर आपकी ये मेडिकल इंश्योरेंस होगी, साल की मिनिमम 15-20 लाख्स पर फैमिली, फैमिली ऑफ 4 एटलीस्ट, सो उस मेडिकल एक्सपेंसेस से, मेडिकल इंश्योरेंस से आपके सारे खर्चे बेयर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 90%। और प्रीमियम क्या जाता है साल का? 25,000। 25,000. सही एज में ले लोगे, आज मेरी एज में, मैं ऑलमोस्ट 40s में आ रहा हूँ अभी, 39 पे हूँ अभी, मेरी एज में भी मैं साल का 24,000 प्रीमियम देता हूँ। करेक्ट. जो एक कंपनी से मिली हुई है वो मिली हुई है, ये अपना एडिशनल ली हुई है, तो आइडली होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बीमार पड़ता है और आप हॉस्पिटल एक बार पहुंच गए, जहां 12-15 दिन आपका निकल गया, और अगर अपनी जेब से पैसे जा रहे हैं तो खत्म. बहुत चुभते हैं, वो बहुत दिक्कत चुभते. है। और आपने जो अभी तक हाँ, जो सेविंग या सेविंग जो करा होता करके है और जो आपने बचाया, प्लानिंग करी होती है कि अरे ये पैसे मैं everything वहाँ is, लगा दूंगा, वहाँ लगा दूंगा, सब चला सब जाता चला है। जाता है. होना बहुत ज़रूरी है। और टर्म इंश्योरेंस का ये बहुत ज़रूरी है कि भगवान ना करे भगवान किसी ना को करे, कुछ होता है nobody या नोबडी वांट्स, तो आपके बाद एटलीस्ट फैमिली कहीं ना कहीं सिक्योर हो पाती है। सिक्योर हो पाती है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो जितने लोग सर्विस इंडस्ट्री में सबको मिलती है, सबको मिल, लेकिन आई बिलीव पर्सनल होनी बहुत ज़रूरी है, होनी क्योंकि अब जरूरी. सर्विस इंडस्ट्री में जब तक आप हो तब तक वो इंश्योरेंस आपकी है। करेक्ट. करेक्ट. जैसे ही आप निकले उसके बाद तो एक्चुअली लोगों को वही चुभता है, फॉर या एग्जांपल जो प्रीमियम देना होता है ना, हाँ, और यार मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है, 4 साल हो गए, मैं 25 पैसे, सो दैट इज वेयर द माइंडसेट कम, या मेनी ऑफ अस इवन इंक्लूडिंग मी, कि ये है. अभी मेरे फादर का नी रिप्लेसमेंट हुआ था, सो आई हैड अ मेडिकल इंश्योरेंस। अब नी रिप्लेसमेंट कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बट इट्स नॉट इवन चीप। 6-7 लाख रुपए का ऑपरेशन होता है, करेक्ट. करेक्ट. वही अपनी जेब से देना पड़े तो 6-7 लाख तो 6-7 लाख ही है, Very लेकिन true. वो मेडिकल इंश्योरेंस में कवर हो गया सारा। वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. So, और that is हमारे very- ज़माने में कैसे होता है, ट्रेडिशनली आर पेरेंट, Yeah, अभी शायद वी आर ऑल एजुकेटेड इन Yeah. टर्म्स ऑफ ऑल दिस, तो हमारे पेरेंट्स वो एज आते आते वो दायरे के भारी हो गए, इंश्योरेंस Yeah. के दायरे के भारी हो yeah, गए. yeah. सो यू विल, वो है, सही बात है कि यू नो योर हार्ड अर्नड मनी विल बी, और अभी आप हॉस्पिटल में स्टेप करो, इट इज मोर लाइक अ कॉर्पोरेट, वो Yeah, पहले ही yeah, पूछता है बिल्कुल। आपके पास इंश्योरेंस है इंश्योरेंस है नहीं या है, नहीं है। and everything is gone. So my last Thankfully, question. government has started now, Yeah. even for senior citizens till the age of 70, I think. नहीं, is उसका the उसका प्रीमियम बहुत है अभी, premium बहुत है. प्रीमियम बहुत है। ये लकीली उनके लिए अच्छा है जो सर्विस इंडस्ट्री में है, क्योंकि जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन करते हो फैमिली इंश्योरेंस Family मिल जाती है। insurance. बट बीइंग अ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, आपको अगर आप लेट एज में करा रहे हो तो प्रीमियम बहुत देना पड़ता है। Correct. नहीं, गवर्नमेंट का जो है ना अभी until 10 lakhs, I think government is covering under Something like कोई Singapore योजना, types वो लोग कर रहे हाँ, हैं. योजना के अंदर Okay. जो है योजना वो के अंदर, मिनिमम correct, कार्ड बनाना होता फ्री है. हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल Very true. इंश्योरेंस सबके लिए कवर्ड है. तो लास्ट 2 क्वेश्चन दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये है, uh, अभी हम लोग जाने वाले, जेन जी इज डन, जेन अल्फा लास्ट स्टेज पे, अभी जेन बीटा आएगा. तो ये जो जनरेशन है, अमेजिंग जनरेशन, नो डाउट अबाउट. व्हाट इज योर फाइनेंशियल एडवाइस टू दिस जनरेशन, जेन जी, जेन अल्फा एंड जेन बीटा, जो अभी 25 से आएगा, अप्रैल 25 से? स्टार्ट सेविंग अर्ली एज मच एज पॉसिबल, दिस इज व्हाट आई फील। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर प्रिविलेज्ड, क्योंकि अभी एक जमाना एक होता है ना, हाँ। बिकॉज उनकी गलती नहीं है. या वही है। अभी क्या है ना विजय भाई, अभी आप देखो ये, अभी जो अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मेरे को लगता है उसमें से बहुत कम होंगे जिनके पास अपना घर नहीं होगा। क्योंकि आज की आप जनरेशन देखो, आज के टाइम में आज जितने कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ, दे बोथ आर वर्किंग करेक्ट. एंड दे मैनेज टू बाय अ Buy a हाउस house. फॉर देयर कमिंग जनरेशन। सो एटलीस्ट उनके ऊपर ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव, वॉट एवर दे आर अर्निंग, दे शुड बी एबल टू मैनेज देयर फंड्स।
So for that, they should start saving early as much as Saving possible. early and knowing about finance. Yeah, knowing rather. about finance, that is more important, most important. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. Yeah, Okay. तो आप जितना जल्दी शुरू करोगे yeah, सही बात आपका है. कंपाउंडिंग उतना नंबर ऑफ इयर्स. आज वॉरेन बुफे जो है, वॉरेन बुफे इसलिए है क्योंकि उसने बहुत अर्ली स्टार्ट बहुत early. किया. Exactly. उसका रिटर्न्स जो है 20% से ज्यादा नहीं है Correct. एनुअली, बट ही Yeah. स्टिल वॉरेन Target. बुफे बिकॉज ही स्टार्टेड अर्ली. yeah. Very way- true. तो जेन जी जो है हमारी और जेन बीटा जो भी है, जेन अल्फा, दे आर वेरी स्मार्ट, Yeah. बट देयर डायरेक्शन इज रॉन्ग. They have a lot of exposure, but to the wrong things. Correct. So the thing is that we get smarter. Yeah. Don't get into peer pressure. Don't Yeah. just copy people blindly around you. You want to follow people like Warren Buffett, follow True. people like Steve Jobs, True. people like Bill Yeah. Gates, because they started Earning. Yeah, early. yeah. They were Started college early. Compounding. dropouts. Very true. Very Right? So you see that your education does not matter. true. Exactly. Right? Where you put your actual education starts when you learn. Yeah. When True. you start learning. True. So even Adam Ku, my mentor, my first mentor, he started at the age of 15. Today he is 50. Yeah. He is a multi-millionaire. $10 million US dollars का उसका portfolio है, True. Yeah. right? And he started it from scratch. So even at the age of 15, if you have pocket money Exactly. and you start, True. right, you can make millions. Yeah, that's Perfect. right. एंड द लास्ट क्वेश्चन. अभी मैं लेमैन हूँ, मैं Yeah. अर्नव है, हम सब लेमैन हैं, और इंटरनेट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड. इतना सारा, एक ज़माना होता था इंफॉर्मेशन नहीं होता था, आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ना. अगर मुझे मेंटर एंड ऑल इज ठीक है, फाइन. मुझे अगर अभी भी लाइक आई हैड सम 10,000 रुपीज़, मुझे जाना था, मैं ऐसे रैंडम देख लिया, कौन ये कर, जैसे शैले से पूछ लिया या कहीं पे, अच्छा ये ब्लू चिप चल रहा है, डाल दो. ऐसा कोई जगह है या ऐसे कोई एप्स हैं विच कैन हेल्प पीपल? आई नो देर आर एप्स इन द मार्केट वेयर जब मैं जाके देखूं कि क्या पूरा ये है और मैं कहाँ पैसे लगाऊं. सो डू यू वांट टू टॉक अबाउट एन ऐप which probably both of you are Yeah. part of that journey? Yeah. So विजय भाई, इसमें ना अभी जैसे हम स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं बेसिकली, सो देर आर मेनी फैक्टर्स टू इट. अब उसमें हमारा टेक्निकल्स आते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल्स इज ऑल अबाउट चार्ट्स एंड ऑल, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शंस over the stock. Then we talk about company fundamentals. When we talk about fundamentals, it's about company P&L statement, profit and loss statement, company's balance sheet, company's performance ratios like ROC, return on equity, ROE, return on equity, ROCE, return on capital and all. Then we also look for what's new happening in the company. Like if company is doing an expansion, so होता क्या है कि NSE और BSE जो हमारी वेबसाइट्स हैं, जो NSE BSE से कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आती हैं, लाइक तो उसमें कंपनी बताती है कि हमने नई फैक्ट्री लगा दी, हम नई फैक्ट्री लगाने वाले हैं, Correct. हमारे पास ये नया ऑर्डर आ गया, या काइंड ऑफ वी हैव हायर्ड अ न्यू मैनेजमेंट, हमारा नया CEO आया, काइंड ऑफ. तो व्हेन वी मैरी ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर, व्हेन वी हैव ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर, वी कैन टेक अ वेरी सिलेक्टिव डिसीजन कि हाँ भैया, जिस स्टॉक में हमें ये 4-6 चीज़ें साथ में मिल रही हैं, प्रॉब्ली दिस कैन बी अ गुड स्टॉक. तो उसके लिए वी गाइज आर रेफरिंग 1 or 2 ऐप्स. जैसे फंडामेंटल्स के लिए वी गाइज, इफ़ यू नीड अ कंप्लीट फंडामेंटल, सो देर इज़ एन ऐप कॉल्ड screener.in. दैट इज़ वेरी फेमस. मेजॉरिटी ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स इन द मार्केट रेफर इट, दैट इज़ फ्री. Okay. मतलब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप उसको फ्री यूज़ करो. आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल चाहिए, सो डेफिनेटली एवरीथिंग दैट इज़ ऑल्सो पेड. देन देर इज़ अनदर ऐप कॉल्ड mystocksetup.com. उस ऐप में आपको, एज आई डिस्कस द प्रोसेस विद यू, कि मार्केट अच्छी है या नहीं है, यू वुड गेट टू गेज द मार्केट हेल्थ. देन इंडस्ट्री अच्छी है कि नहीं है, यू वुड गेट अ इंडस्ट्री हेल्थ. एंड विद इन दैट इंडस्ट्री व्हाट ऑल कंपनीज आर गुड. अगर वो कंपनी अच्छी है तो क्यों अच्छी है, उस कंपनी में क्या नया चल रहा है in terms of corporate announcements, management क्या बोल रहा है. So all those things get married together, and based on that you can filter out the stocks. So various combinations, Various permutation, combinations, the best combinations also, because I don't think there is any other app exists in the market wherein all these factors are getting married together at a one place. एक और है MarketSmith, Yeah. which is also very good Yeah. for overall. Correct. और चार्ट्स वगैरह आपको चाहिए, टेक्निकल चार्ट्स वगैरह चाहिए तो TradingView इज द बेस्ट. और Yeah. दूसरा है investing.com. Okay. तो ये काफ़ी सारे सही हैं. तो
वही एक लेमैन के लिए वो एक ही जगह पे, बिकॉज नोबडी वांट्स कि मैं ठीक है, जीरोधा इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लोग तो वहाँ भी जाके ढूंढते हैं कि यार कुछ एडवाइस मिल जाए. सो यू सेड कि माई स्टॉक सेटअप My डॉट stock कॉम. setups, yes. सो वेर इज इट अवेलेबल? इट इज देयर प्ले Yeah, स्टोर yeah, पे? no, it's not on the Play Store. It's a web app. अच्छा, इट्स अ वेब ऐप. Yeah, it's a web app. You can just go there. ओके ओके Yeah, ओके. it's a web app. सो और लेमैन जो होगा, स्टूडेंट, Yeah, लेमैन, रिटायर्ड, एनीबडी इट्स इजीली मनोरेबल दैट ऐप, कोई yeah, भी yeah, जाके yeah, देख yeah, सकता है. definitely. It's well Yes. supported with glossary and all, so one Okay. can just go ahead. Yeah, you Yes. can go through And we that. also have a community Yeah, of traders and investors अच्छा. जहाँ पे आपको support, yeah, guidance मिल सकता है. Correct. Right, I am myself coaching people. I mean, Okay. I have my own technical analysis workshops and all, Okay. wherein I coach people who want to do direct equity. yeah, Perfect. At the Perfect. same time, understanding even screener.in और ये stocks कैसे screen करना है, yeah, कैसे एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, रिस्क रिवॉर्ड वगैरह कैसा देखना है, आपको Yeah. कैसे डिसाइड करना है, आपको रिस्क असेस कैसे करना है, yeah, Perfect. ये सारा कुछ हम कोच करते हैं. इवन Yeah. टूल्स एंड स्ट्रेटजीज आल्सो वी yeah, तो हम क्या करेंगे कि ड्यूरिंग लिंक में, द yeah, पॉडकास्ट के definitely. लिंक में, वी विल, इट विल Sure, बेनिफिट लॉट ऑफ पीपल. श्योर. sure, sure. सो थैंक्स फॉर 2 घंटे हो गए बाय द वे. बड़ा बेसिक से लेके वी ग्रेजुएटेड टू बिट टेक्निकल बीच में, देन अगेन वी केम टू बेसिक. सी आइडिया ये है कि वैसे बनाना है, अकाउंट में पैसा देखे तो एवरीवन Yeah. लव्स ना, इट हैज टू बी, और होना भी चाहिए. ये नहीं कि बहुत कुछ ले रहे हैं, बट जैसे शैलेश ने कहा था, पैसिव इनकम इज समथिंग that is विच important. एवरीवन Should एडवाइजेस. have, yeah. एंड आई एम श्योर जो भी ये देखेंगे, इट विल बेनिफिट. थैंक्स रोहित भाई, शैलेश भाई. इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन. Thank you, मेरे Vijay लिए bhai. भी लॉट्स ऑफ लर्निंग, वेरी वेरी बेसिक थिंग से लेके नाउ कि वेयर, बिकॉज ट्रेडिशनली हम वो सेविंग और एफडी में फंसे हुए लोग हैं. Yeah, एंड that's true. जैसे स्टॉक ये बोले तो हो जाता है कि ये गैम्बलिंग है एंड ऑल, विच इज़ नॉट, विच इज़ नॉट. एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग, मेकिंग मनी, एंड दैट इज़ माई एडवाइस टू. मेरे भी जो डिफेंस में जब हम थे तब पैसे ठीक है था, DSOP was our everything. So I would advise you to diversify, and Yeah, then that's right. you have a good. We also spoke about Gen Z, Gen Alpha. Yeah. We also spoke कि retired होने के लिए, अच्छे retirement के लिए क्या होगा. We also spoke about what is the right time of investment. So Yeah. a very in-depth talk. Thanks to both of you for Thank you, taking your Suresh bhai. time. It's my Thanks pleasure. Yeah. to Thank you, Rohit Vijay bhai bhai. for It's a coming pleasure. from Delhi. And Yeah. it's a different podcast. So मुझे ये था कि फौजियों और जो भी देखेंगे, फाइनेंस का बारे में बताना was one of my aim. यहीं हम लैक कर जाते हैं. So thank you to both of you. Thank you, bhai. And Thank you so much. Thank you. It's my फौजी pleasure. टॉक्स में आने के लिए. It's my pleasure. So धन्यवाद. Yeah. Thank you to Thank you. Thank you. Rohit Vijay bhai, Thank Shailesh you. bhai. Thank you. So this is Rohit bhai. Thank you, This is Vijay Fauji bhai. Talks, or this is what I call पानी वाला मेजर. So this is for you. Thank you so much. नीचे Thank मैंने you. लिखा भी है. Thanks. Thank you for, so much. Thank you so much. Thank you It's my for pleasure. listening. It's my pleasure. And Thank you. this is for Shailesh bhai. This is Fauji Talks. Thank you so much. And Thank you. idea यही है to make people aware about the Thank you. Fauji things and Yeah, this yeah. thing. Thank you. I hope Thank it you. finds a beautiful corner in your houses. Sure, sure. both of Definitely. yours. Definitely. And I also have for Arnav. Last time I couldn't. So this is for Arnav. Thanks for helping me always. Thank you so much. Thanks Arnav. This will definitely find a beautiful corner in your place. Thank you so much. I really appreciate it. Pleasure.